के पीछे ओम शिवपुरी की बड़ी भूमिका थी। और यद्यपि ये जो हम एक छोटी सी ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सुनाने जा रहे हैं उसका देशांतर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो ओम शिवपुरी ने अंधा युग में जो कृष्ण का एक संभवतः वही होगा, प्रभु हूँ या परात्पर, पुत्र हूँ तुम्हारा तुम माता हो इत्यादि, तो वो थोड़ा सा सुनाएंगे ताकि उनकी आवाज़ सुन के कुछ उनकी स्मृति उद्बुद्ध होगी। नहीं, कुछ नहीं है असल में, देशांतर का से कुछ मिला ही नहीं है दिशा के अलावा। यानी वो दिशा भी जब मिली थी सब मिली थी, लेकिन कोई ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स भी नहीं मिल पाए, कोई और चीज़ नहीं मिली। अगर मिल जाती तो कुछ कतर ब्योत करके कुछ कर सकते थे, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। तो पहले ओमपुरी की आवाज़ में अंधा युग का ये छोटा सा अंश सुने। सॉरी, ओम शिवपुरी ओम शिवपुरी की आवाज़ में सुने और फिर देशांतर के बारे में। माता, प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक धराशायी हुआ, कोई नहीं था, वो मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप यह तुम्हारा स्वीकार है। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूं पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। हमारे पास जो गिनती है उसके अनुसार देशांतर ने 30 नाटक तैयार किए और प्रस्तुत किए। श्री राम गोपाल बजाज, श्री बनवारी तनेजा, श्री सुदेश स्याल, श्रीमती चेतना जालान और अनुराधा कपूर कृपया मंच पर आ जाएं।
अनुराधा कपूर संचालन करेंगी। At the very outset, I want to thank Natrang Pratishthan and Raza Foundation for making this 2-day experience of both nostalgia but also a sort of history. And we often forget that part of nostalgia is also bringing up history. So here, when we have the occasion to share anecdotes as well as bits about how certain plays came to be, how certain performances happened, it's I think extremely, it's emotional, but it's also something which is very concrete. And I'm really grateful that you all are here, and some of us we've met on occasion over the years, but to meet on such an occasion as today is very, very special. I just want to begin by saying that just a very, very brief frame of Deshantar. I joined Deshantar a little later after it had been formed, but it was formed in 1967 with Om Shivpuri, Sudha Shivpuri, Ram Gopal Bajaj, and Mohan Maharishi. And it was formalized in 1968, and we had V.M. Baldola, Bamdev Prasad Sinha, and B.V. Karantji as treasurer. So it's a little small nugget of history that comes up in front of us. And of course, B.M. Shah. Now, it's something that I would like just to say that at that time, for my own memory, but also for the memory for all of us, we were the younger generation. That's Banwari. It sounds very strange to say that now that we are all in our mid-60s, but it was the younger generation. We are also younger. So we were very much students at that time. And for me, one of my most, I think, cherished experiences was actually being Shivpuri Sahib's student and an admirer before I became his student. But I think for all of us, Deshantar at that time was a sort of school. And it was something that we learnt our many various vocabularies from. But the other aspect, which is my own personal experience, and I think I would speak for my generation there, was a feeling of being part of a larger movement. That it was a movement of a sudden feeling of being part of a kind of modern Indian theatre was actually being shaped with and our interventions, but also our teaching, our learning. So I think that that sense of being beyond just a group of people who were part of making theatre, there were many ideas that were generated, many thoughts. And with that, I just want to, before I end, these are all called amateur groups, but it had a huge amount of professional passion. And I just think it's wonderful to go back to the word amateur. The root is amor, which is love. So I think a lot of part of being the amateur group was being deeply in love, as it were, with the theatre. So with that, I want to ask Bajaj Sahab to bring in the first part of the histories of the beginning of the theatre, Deshantar, and then we carry on. नमस्कार। इसके पहले कि और बातें करें, यह बताएं कि ये कैसे इसकी प्रक्रिया शुरू हुई, कहाँ जहाँ यह दिखती थी डाल वहाँ बीज न था, जहाँ बीज था वहाँ डालें न थी। ये बताने के पहले मैं नमस्कार करूं यहाँ जो लोग मौजूद हैं और उन लोगों को भी देशांतर के अलावा, अभियान के अलावा, यात्रिक के अलावा, डीएटी के अलावा, जब हम सरीखे लोग एनएफटी के लिए यहाँ दिल्ली में आए थे तो
एक इंद्रप्रस्थ थिएटर हुआ करता था आरजी आनंद साहब का, इप्टा का काम होता था, कुछ और ग्रुप्स भी थे जिनके काम को हम देखते थे। और मुझे याद है कि सबसे पहली मेरी स्मृति में थीव्स कार्निवाल नाम का एक नाटक था जो म्यूनिसिपैलिटी के एनडीएमसी के हॉल में राजेंद्र भाई का डायरेक्शन था, YWCA में, और जानवी के प्ले का ये एडेप्टेशन या कुछ था, ये बाद में पता चला था। यह सब देख करके हमारे जैसे जो कुछ लोग एनएफडी में आए थे अलग अलग जगहों से, हमारी रुचि हिंदी साहित्य और कविता में थी, तो ये लगा कि कविता के अतिरिक्त भी कुछ काम ऐसे हैं जिसमें और अर्थ हो सकते हैं, सिर्फ नाटक एक चौंचला भर नहीं है। ट्रेनिंग हुई, अलकाजी साहब ने पढ़ाया, नेमी जी ने पढ़ाया, शांता जी ने पढ़ाया, गोवर्धन पांचाल जी थे, कई लोगों से हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी, समझने की कोशिश की। उस क्रम में हम लोगों के मन में ये था अधिकांश कि नाटक में ये जो 4 प्रकार के अभिनय हैं, आहार्य और आंगिक, वाचिक, सात्विक, इस सब में वाचिक का महत्व हमें बहुत लगा था। अब ये मतांतर होंगे, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग ये होंगे, और हमारा ज़्यादातर जो हमारे साथ लोग थे भाषा की तरफ ज़्यादा रुझान था, और इसलिए विषयगत चिंतन महत्वपूर्ण हो गया था अलकाजी साहब की क्लासेस के द्वारा और नेमी जी की क्लासेस के द्वारा। एक बार एक आंसर बुक में मुझे बहुत कम नंबर दिए जैन साहब ने, तो मैंने कहा सर मुझे तो अंग्रेज़ी नहीं आती। नहीं, सवाल अंग्रेज़ी और हिंदी का नहीं है, विचार का है। ये जो तुमने बातें करी हैं मुक्तधारा के प्रसंग में, ये प्रश्न हैं, और ये बातें तो आनी चाहिए, तुम किसी तरह की टूटी फूटी भाषा में लिख दो। तो इस प्रकार जोर आने लगा कुछ विचारों पर, सोच पर। बहरहाल एनएफडी के 3 साल बीते, फिर हम लोग शुरू में एनएफडी की रेपर्टरी में काम कर रहे थे। किसी बात पर हमारे उस्ताद, जो हमारे सबसे बड़े उस्ताद थे और जिनके संस्कार बहुत गहरे हैं, किसी बात पर वो नाराज़ होकर के उन्होंने कह दिया, "You tea leaking Indian, why have you not done this?" और यह जुमला नागवार गुजरा। 67 की बात है, शायद ये फरवरी या मार्च की बात होगी, और हम लोगों ने कहा यार ये क्या बात हो गई, ये ऐसा कैसे कह दिया इन्होंने हमें, हम ऐसा तो नहीं, हम तो काम करते हैं। और हम लोगों ने उस समय रमेश जी दिल्ली टीवी के स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे, दूरदर्शन सिर्फ दिल्ली ही था। ऑफ़र्स हुए थे कि आप लोगों को जॉब्स दी जाती हैं, और हम लोगों में से कुछ लोगों ने ये प्रतिज्ञा की थी कि हम कोई जॉब्स नहीं लेंगे, हम लोग साथ रहेंगे, हम लोग ये काम करेंगे। और उस पर हमारे उस्ताद ने ही हमें ये कह दिया, "You tea leaking Indians." मुझे याद है कि हम 4-5 जने अलकाजी साहब के रविंद्र भवन वाले उस कमरे में गए थे, और हम लोगों ने एक चिट्ठी लिख करके दे दी कि सर आप हमें छोड़ दीजिए, हम आपको करके बताते हैं कि हम टी लीकिंग इंडियंस नहीं हैं। अलकाजी साहब ने कहा, "वेल, यू वांट सम क्वेश्चंस ऑन मी?" मैंने कहा, "नो सर, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने आज कुछ कहा है तो हम कुछ करना चाहते हैं, आप हमें छोड़ दीजिए। हम आपको प्रतिज्ञा करके जा रहे हैं कि हम कोई नौकरी करने के लिए नहीं जाएंगे, और हम कुछ काम करके दिखाएंगे आपको।" तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो कि ये जो मई आने वाली है तब तक रुको,
हम उसके बाद तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सटेंड करेंगे। मैंने कहा हाँ, हमारे कॉन्ट्रैक्ट मत एक्सटेंड कीजिए। वी लुक्ड एट ईच अदर, शिवपुरी, मी, सुधा, मोहन एंड वीरेंद्र शर्मा, ये हम लोग छठा सोनटक के थे। ही कंटिन्यूड। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर, मत बढ़ाइए। अच्छा, तो 1 मई से 15 मई 67, आप रिकॉर्ड जा कर के देखिएगा, दैट इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल डन बाय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और वॉट एवर आई हैव सीन इन दिल्ली, जिसमें 5 नाटकों का एक फेस्टिवल जो हम लोगों ने तैयार किया था अलकाजी साहब के साथ, जिसमें एक अंधा युग था, which was directed by Mr. Alkazi in association with Om Shupuri. Later on, Om Shupuri's name was dropped. Tughlaq, which was directed by Om Shupuri, Kanjus, and Waiting for Godot, Suno Janmejai. ये नाटक उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि हम इन 5 नाटकों का आप लोगों के जाने के पहले एक फेस्टिवल करते हैं, इसमें आप शामिल होइए, उसके बाद आप जाइए, और इस फेस्टिवल के दौरान की तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी। हमने कहा ओके सर। अलकाजी साहब की फितरत को जानते हुए उस वक़्त तो हमें क्रोध आया था, आज हमारी समझ में आ रहा है कि वो हमारे पता नहीं कौन सी अग्नि परीक्षा में हमें वो डाल रहे थे, और वो एक चुनौती बनी थी। और शाम के समय शो के बाद, चाहे वो शो रविंद्र भवन में हो या फिरोज शाह कोटला में, जहाँ तालकटोरा गार्डन्स में वो शोज़ हुए थे कुछ, तुगलक और अंधा युग के, वहाँ से लोधी कॉलोनी, उस वक्त हॉस्टल नहीं होता था, हमें जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था, वहाँ से वहाँ तक पैदल जाते थे, बहुत महसूसता था जिल। और मैं यह भी बताऊं कि ये देशांतर के ही बीज नहीं हैं, ये भारंगम का भी बीज है। ये बहुत सारे काम जो हमारे बैचेस के उस आसपास की पीढ़ी के लोगों ने किया, उसका बीजारोपण यहाँ हुआ था। मई में निकल करके फेस्टिवल करने के बाद हम लोगों ने कहा अब क्या करें, कैसे करें। तो यात्रिक उस वक़्त सबसे सक्रिय ग्रुप था, हम लोगों को पसंद भी था, आदर भी था उनके काम के प्रति। मैं कह सकता हूँ कि थिएटर का एक मूवमेंट अगर हमें कोई महसूस हुआ था उस वक़्त, तो यात्रिक के माध्यम से हुआ था। और कभी कभी एलटीजी के कुछ काम देखते थे। हमें ये भी याद है नेपोलियन बोनापार्टे का शो हमने एलटीजी की छत पर शिवेंद्र सिन्हा के निर्देशन में देखा था, जहाँ मोहतरिमा ने रोल किया था और हम लोग यूं हुआ करते थे। एलटीजी यात्रिक में हम लोगों ने जा कर के बात की, पहचान तो थोड़ी बहुत थी दर्शक के तौर पर। तो मिसेस माइकल ने हम लोगों को बुलवाया और 8 महिलाओं का एक मंडल बैठा था, जिसमें मिसेस रोशन अलकाजी थी, कुसुम हैदर थी, रति वार्थोलोमियो थी, मिसेस जॉय माइकल भी थी। और हम लोगों से कहा बोलो क्या करना चाहते हो, तुम लोग निकले हो। तो हमने कहा कोई प्ले करना चाहते हैं, क्या करोगे। तो मोहन महर्षि के निर्देशन में एवं इंद्रजीत उस समय बादल सरकार का करने का तय हुआ। मोहन वांटेड टू डू दैट, और उसका बांग्ला से हिंदी अनुवाद के लिए मैंने भारत जी को राज़ी किया था, भारत भूषण अग्रवाल जी, और उन्होंने वो अनुवाद आरंभ किया था। उस दौरान उनका इंतकाल हो गया, तो बचा हुआ फिर मैंने किसी की मदद से पूरा किया था, वहाँ शुरू हुआ। लेकिन हमें लगा नहीं कि यात्रिक के साथ हम जितना काम करना चाहते थे एक साथ लगातार, वो उनके क्रम में नहीं बैठ पा रहा था। हम तुरंत और नाटक करना चाह रहे थे, दूसरे लोग भी करना चाह रहे थे। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल IML ने, उन्होंने कहा कि हम संवाद, हमारे पास एक संस्थान है, उसमें आप लोग शामिल हुई और बोलिए क्या करना चाहते हैं। तो एवं इंद्रजीत करने के बाद यात्रिक के हमने शायद ये जून जुलाई में किया होगा या अगस्त में किया होगा, और उसके बाद संवाद के साथ कछुआ और खरगोश नाम का एक नया नाटक
ससाणे कासव मराठी नाटक का हिंदी अनुवाद अरुण जोगलेकर ने मुख्य भूमिका की थी, मैंने की थी। शिवपुरी के निर्देशन में हुआ सप्रू हाउस पर। और इन दिनों में सरदार पटेल विद्यालय के प्रिंसिपल, मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल कपूर साहब और एक स्प्रिंगडेल स्कूल की आचार्य हुआ करती थी मिसेस कुमार, ये लोग थिएटर देखने आया करते थे। कारंत जी सरदार पटेल स्कूल में मिसेस कारंत पढ़ा रही थी और कारंत जी वहाँ बच्चों का थिएटर करते थे। शांता जी का बच्चों का थिएटर हमने देखा था। तो मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सारा वो पूर्व पीढ़ी का ये वितान था जिसमें हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे थे या भटक रहे थे। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी शिकायत भी है, शिकायत नहीं भी है। लाल साहब से भी ये हुआ कि भाई चूँकि हम लोगों के पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई ऐसे घरों से आते नहीं थे कि हमारी जीविका चल जाती, तो कैसे करेंगे। तो इतनी बात हुई कि अच्छा तो ब्रोचर्स में जो आएगा वो ग्रुप का होगा। ब्रोचर को वो ब्रोचर बोलते थे। और जो टिकट से आएगा वो तुम लोग मन का नहीं, तो हम लोग नहीं, वो टिकट का जितना आएगा उसमें से हम आधा ही लेंगे, आप प्रोडक्शन में खर्चा कीजिए, ठीक कीजिए। और मुझे याद है कि शिवपुरी, सुधा, मी, हम लोग बाराखंबा रोड को हम लोग अपनी बपौती समझते थे। यहाँ उससे आने जाने वाले जो भी होते थे उनको रोक करके टिकट बेची, बंगाली मार्केट के घरों में जा कर के टिकटें बेची। और हमारे हिसाब से सप्रू हाउस करीब करीब 3/4 हम बेच चुके थे। लेकिन जब बारी आई टिकट के पैसे एक्टर्स को देने की, तो थोड़ी सी मुश्किलें हुई। बहरहाल हमने उनका धन्यवाद किया और हमने सोचा कि नहीं, हमको अपना ग्रुप बनाना चाहिए, लेकिन कैसे बनाएं। इसी बीच में कछुआ खरगोश देखने के लिए भी रमा जैन जी, साहू जी और ये तमाम लोग आए थे। और हम उस वक़्त दिनमान में अज्ञेय जी की कृपा से कुछ कुछ स्तंभ लिखा करते थे और वहाँ रघुवीर सहाय जी भी काम करते थे। अब हमने वहाँ जा कर के कहा कि ऐसे से बात हुई है और लाल साहब ये कह रहे हैं कि आपको ज्ञानपीठ में गणदेवता भी करना होगा, तो उसके लिए कुछ बात चल रही है, आप लोग को हम वहाँ से पैसा दिलवा देंगे। सहाय साहब ने कहा कि देखो राम गोपाल, रमा जी को और साहू जी को और इन तमाम लोगों को किसी ग्रुप के नाम से मतलब नहीं है, इस टीम से मतलब है जो NFT से अभी निकली है और ये काम कर रही थी, चूँकि वे लोग ये सब देखते रहे हैं। तो आप लोग खुद अपनी संस्था क्यों नहीं बनाते किसी भी ग्रुप में जाने की बजाय, क्योंकि आप स्वयं करने के तो समर्थ हैं, बाकी साधन धीरे धीरे जुटेंगे। मैं दिनमान से पैदल दौड़ता हुआ मॉडर्न स्कूल आया। मैंने कहा भाई साहब मतलब ओम शिवपुरी, सीनियर का मतलब भाई साहब, आज भी दादा बोलते हैं ना सीनियर को दादा, तो सीनियर थे भाई साहब। उन्होंने तो कैसे होगा, सारे लोग, मैं सोचा कि अच्छा चलो कुछ ऐसा ही करना है तो ऐसा करें। और नामकरण की बात आई, नामकरण मेरे ज़िम्मे पड़ा। तो उस समय मैं धर्मवीर भारती जी की वो विश्व साहित्य विश्व की 28 विभिन्न भाषाओं की कविताओं का अनुवाद देशांतर नाम का संग्रह छपा हुआ था, वो मैं पढ़ रहा था। तो देशांतर, देशों का अंतर, मैंने कहा नहीं, हम ऐसा करेंगे तो दिशा में अंतर करेंगे। वी वुड लाइक टू, हम लोग कुछ ना कुछ इसमें फ़र्क करने की कोशिश करेंगे। देयरफॉर इट कैन बी दिशांतर। और या फिर चूँकि 7-8 नाम चुने जा रहे थे, क्योंकि एक संस्था बनानी होती है तो शायद 7 या 8 मेंबर होने चाहिए, बेसिक मेंबर 7। हाँ, तो उसी समय कुछ कुछ पुराना साहित्य पढ़ रहा था, तो मैंने कहा कि या तो दिशांतर या अष्टावक्र।
तो क्या ये क्या होता है, ये क्या होता है मानो, क्या ये अष्टावक्र क्या होता है? मैंने कहा भाई साहब हम लोग 7-8 जने हैं ना, हम लोग अलग अलग तरह के लोग हैं, हम लोग 8 बांके हैं अष्टावक्र। अब वो हंसे, मोहन बहुत नाराज, वो नहीं छोड़ दो, देशांतर ठीक है करके देशांतर नाम तय हुआ, रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर गणदेवता। और गणदेवता की शुरुआत के लिए हमने लोगों को बुलाया, तो काफ़ी लोग उसमें आए थे, और उसमें शाहजी आ गए, चमन बग्गा आए, हमारे साथ के जो लोग थे एनएफडी से पुराने जो भी निकले हुए लोग थे वो थे ही, और कुछ ऑल इंडिया रेडियो में चूँकि हम लोग आर्टिस्ट के तौर पर जाते थे, शिवपुरी, मोहन, सुधा, मी, वी ऑल बिफोर केम टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वी वेर ऑल्सो रेडियो वॉइसेज इन पटना और जयपुर और जोधपुर, वेर एवर दे वर। सो दिस हैज़ बीन अ डिफरेंट ट्रेनिंग बैकग्राउंड for us before coming to National School of Drama. Yeah. Coming to that part. अब जब गणदेवता हम लोगों ने शुरू किया तो वहीं से लक्ष्मीचंद जैन साहब और कुंथा जैन जी, ये ज्ञानपीठ के उस समय सचिव थे, उन्होंने कहा कि आप ये बहुत अच्छा हो बन पड़ा है गणदेवता, तो आप कलकत्ते भी इसका प्रदर्शन कीजिए। तो हम लोग ने कहा कि कलकत्ते हम अकेले नहीं जाए, एक नाटक लेकर के क्या जाएंगे हम। तो तय हुआ कि कितने नाटक आप लेकर के आ सकते हैं। हमने कहा 3-4 तो होने चाहिए। तो तुगलक जो कि वंशोपुरी ने किया हुआ था उसको, और कंजूस जिसमें शिवपुरी प्रधान भूमिका करते थे, लेकिन अलकाई साहब का प्रोडक्शन था, हमने अलकाई साहब से परमिशन मांगी कि सर हम वहाँ जाएँ। और तुम लोग इतने लोगों का, हाउ कैन यू सो मैनी पीपल? सर वी विल गो, ओके आई विल सी, ओके डू इट, आई डोंट माइंड, डू इट। ही डिडंट बिलीव एंड ही गेव अस परमिशन and he didn't believe, he gave us the permission at that time. Maybe I am wrong that he didn't believe. We were given the costumes for those shows of initial Tughlaq from the school, but Taslim Lal ji, who had to make the set of Tughlaq in Calcutta, was pulled after he came back very badly by Chacha, that is Alkazi Sahab, कि why did you go? तो ये contradictions उनके भी चलते रहते थे, लेकिन वो मदद भी करते रहते थे। और इस प्रकार से दिसंबर 67 में शायद ये ज्ञानपीठ का फंक्शन हुआ था मावलंकर हॉल में, और उसके बाद जनवरी-फरवरी में या मार्च में हम लोग 68 में कलकत्ते गए, जिसमें ये 4 नाटक लेकर के गए थे हम लोग। लौट करके आकर के इसका फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद तो क्रम है, जो कुछ भी घटनाएं हैं। और अलकाजी साहब ने तब बुला करके ये कहा कि आई वुड लाइक टू डू अ प्ले फॉर यू, एंड देन वी हैड डिसाइडेड दैट ओके। बादल सरकार का 300 शताब्दी जो हिरोशिमा के नाम से उन्होंने किया, हमारे साथ किया, दैट वाज अ वेरी बिग ऑनर एंड पैच अप बिटवीन अस, एंड वी यूज्ड टू कम to National School of Drama to see which new actors have come who are emerging, etc. So in that sense, Deshantar was a formation of the young boys who were angry with their elders and wanted to show up something. So उसमें चिंतन का पक्ष कम था, लगता था कि हम विचार कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरह का प्रतिरोध था, और इस क्रम में शुरू हुआ। आई वांटेड टू जस्ट बिकॉज आपने ये जो कहा कि एक चिंतन के बारे में और कुछ प्रतिरोध के बारे में, पर मुझे एक चीज़ आपसे सुननी है। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक इज पार्ट ऑफ आवर मेमोरी वेरी मच, बनवारी एंड माइंड, is the association, the very close association in Aadhe Adhure
with Mohan Rakesh. And the special experience of having all the rehearsals, almost all of them, with him sitting there in his presence and sometimes suggesting something via Shivpuri ji or via, after the rehearsal. So this kind of collaboration, I think, was a very special thing. 69. 69 when we were doing Aadhe Adhure. हाँ, So तो could you just आधे अधूरे comes at the end of 68. अब ये 67 and 68 के बीच में आता है एक महत्वपूर्ण मोड़, खामोश अदालत जारी का। अब एक तरफ तो हम लोग अभियान यात्रिक वगैरह से का काम को देखते भी थे और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा भी थी। तो अब सई परांज पे कोई प्ले लेकर के जा रही थी बॉम्बे, मैं उनकी लाइटिंग कर रहा था। द ब्लाइथ स्पिरिट करके नर्सिंग कॉलेज के लिए उन्होंने किया था, उसका वहाँ बॉम्बे में शो था। और वहाँ कमलाकर को मैंने कहा कि मैंने सुना है तेंदुलकर जी ने कोई नया नाटक लिखा है तो उसकी स्क्रिप्ट हमें दिलवा दो ना। वहाँ तेंदुलकर जी से मेरी मुलाकात हुई थी मुंबई मराठी साहित्य संघ के ऑडिटोरियम में, और उन्होंने कहा कि हाँ आप लोगों ने ग्रुप बनाया है, मैंने सुना है, तो मैंने कहा ये हमें दे दीजिए, हमने सुना है। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दे दी थी, हम ले आए थे और हमने सोचा कि हमारे हाथ में एक तीर आ गया है, क्योंकि हम नटमंडल तो थे लेकिन स्वयं नाटक लिखना, बनाना या डेवलप करना, ये क्षमता या सोच हमारे पास नहीं था। कहीं होता भी है, कहीं गलत भी होता है, सही भी होता है, बट वी वर लुकिंग फॉर द स्क्रिप्ट्स। चूँकि एक विशेष तरह का गुडविल इस ग्रुप ऑफ एक्टर्स और वे ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो जमा हमारे साथ हो रहे थे, जिसमें अब ये सोचिए कि देशांतर एक नया ग्रुप कलकत्ता ट्रैवल करता है, चाहे ज्ञानपीठ के सहयोग से करता है, लेकिन 85 लोगों की टीम थी, 85 लोगों की प्राइवेट ग्रुप की टीम, प्राइवेटली बीइंग हैंडल्ड, और 4 नाटक उसके वहाँ के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में किए गए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं कर पाया था उस वक्त तक, सारे साधनों के बावजूद। ये नतीजे के तौर पर ये होना शुरू हुआ कि ये 68 का फरवरी मार्च होगा, और तब ये होने लगा था। और इधर जो कुछ नाटक हम लोग देखते थे अभियान में, तो या तो कोई हिंदुस्तानी, क्योंकि देशांतर ने भी लगभग अज्ञात रूप से कोई फ़ैसला नहीं लिया था, लेकिन अनकॉन्शियसली हमारा ये डिसीजन था कि हमें हिंदुस्तानी नाटक ही करने हैं। देशांतर ने आज तक जितना भी किया है उसमें कोई विदेशी नाटक नहीं है, सिवाय एक जो हमने मैक्स मुलर भवन के साथ कोलैबोरेट किया, उसमें वो लुडविग की पुश इन द बूट्स का एडेप्टेशन, वो वहाँ के डायरेक्टर आए थे, उनके लिए हम लोगों ने किया था। वी वेयर द एक्टर्स टीम। सो कंपटीशन ये था मन ही मन, और जलन भी होती थी कि ये स्क्रिप्ट बादल बाबू की या तेंदुलकर जी की हमारे पास आएगी या राजेंद्र भाई के पास जाएगी, मतलब अभियान में जाएगी या वहाँ जाएगी। ये एक खींचतान चलती थी और एक सहयोग भी चलता था। श्याम भैया वहाँ से कहते थे भैया ऐसा करो, तुम लोग आपस में लड़ो नहीं, ये स्क्रिप्ट उधर दे दो, ये इधर दे दो, ये नाटक करो तुम लोग उधर, दुबे जी। लेकिन ये होता था कि पहले कौन करेगा, तो एक कंपटीशन कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, और दिल्ली में 2 ग्रुपों के बीच कि ये नाटक हम पहले करेंगे, ये एक चल रहा था। और साथ साथ ये भी था कि मुझे याद है सुधा शिवपुरी की ज़रूरत पड़ी थी अभियान में, तो कर्टसी देशांतर वहाँ काम किया था। मैंने राजेंद्र भाई के लिए घासीराम कोतवाल में अभिनय किया था, और आपको बुलाया बाद में नाटक करने के लिए देशांतर के लिए। तो ये लेन देन भी ग्रुप्स के बीच में चल रहा था। किसी ग्रुप, जैसे मुझे कल बहुत ही याद आई शीला जी की, क्योंकि चंद बदला दा जो नाटक हुआ था उसकी लाइटिंग मैंने धिंगरा के साथ मिलकर के की थी, उसकी रिहर्सल्स में मैं वहाँ जाता था। तो इस प्रकार इन मंडलियों के बीच में ऐसा कुछ चल रहा था। तो आज विचारने की बात यह हो रही है कि रंगमंच
कि जो भी फॉर्म्स को हम प्रैक्टिस कर रहे हों, लेकिन रंगमंच अपने आप में फॉर्म के तौर पर आगे के लिए कितना वैलिड रह जाएगा या किस रूप में रह जाएगा, हम स्मृतियों के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी सोच सकें, क्योंकि हमारी अगली पीढ़ी के लोग यहाँ हैं और एक स्कॉलर हमारे बीच में बैठी हुई हैं, तो वो मुझे रिमाइंड करती हैं। तो मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इन बातों को याद करते वक्त जब आपने ज्वाइन किया आधे अधूरे में, तो राकेश जी डायरेक्टली जुड़े हुए थे और मुझे रिज़र्व कर लिया गया था उस वक़्त कि तुम लाइटिंग करोगे। अब मैं लाइटिंग अच्छी करता था, अब लगता था कि उस वक़्त मेरा अभिनय उतना अच्छा नहीं रहा होगा, तो लाइटिंग के लिए वो रिहर्सल मैंने देखी हैं। और जिस तरह से राकेश जी और शिवपुरी में बातें होती थी, कास्ट के बीच में बातें होती थी, ये कोलैबोरेशन आज भी होना चाहिए और बढ़ना चाहिए। सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भरोसे नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये हो तो तब जबकि हमारा समाज जीवंत विधा के लिए जो एक्टर सेंट्रिक है उसके प्रति जागरूक हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो हमारे समय में आ रही थी और बढ़ गई है, उसके सामने थिएटर के ये सब करने के हम लोगों ने जो कुछ किया उसके कितने मानी रह जाते हैं या नहीं रह जाते हैं, उसको स्मृति के साथ उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए। अभी मैं इतना ही करूँगा। आधे अधूरे के बारे में थोड़ा बताइए, द प्रोसेस, बिकॉज I think many of us have taken a long journey through from 69 to about 72, 73. You joined later. Yes. But no, so just tell us a little bit of your experience and then. मैं एक्चुअली आधे अधूरे की ओरिजिनल कास्ट में नहीं था, तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं नहीं बता सकता। मैं यहाँ दिनेश ठाकुर का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे मरहूम दोस्त का, क्योंकि वो उनको कुछ मुंबई में काम मिल गया और वो वहाँ चले गए। जो रोल वो करते थे वो रोल मुझे मिलने शुरू हो गए। तो नहीं तो बहुत मुश्किल था। एक जो एक्टर अभी ज्वाइन ही किया है उसको कुछ उस तरह के पर्टिकुलरली आधे अधूरे का रोल या कंजूस में, क्योंकि वो दोनों प्लेस में वो रोल करते थे, तो मुझे मिले। तो मैं बहुत ज़्यादा तो उसके बारे में अनुराधा कुछ कह नहीं पाऊँगा, बट ये है कि आप लोगों के साथ, क्योंकि अनुराधा तो टिल एंड जब तक वो प्रोडक्शन रही आधे अधूरे ये रही उसमें, और इनके साथ किया। दैट वाज माय फर्स्ट प्ले आई थिंक विधा, और उसके बाद एक और प्ले बिल्ली चली पहन के जूता, और फिर अंत नहीं। तो ये सब हुआ। आधे अधूरे में मैं बहुत ज़्यादा अनु रिहर्सल्स के बारे में या उसके बारे में कुछ नहीं कह सकूँ। हाँ नहीं, वो हाँ शाहजी का त्रिशंकु एक्चुअली पहले हो चुका था, लेकिन हुआ यूँ कि ये बजाज साहब जो हैं इनको बहुत शौक़ था कि नए नए लोग थिएटर से जो थोड़े प्रॉमिसिंग हैं, प्रोग्रेसिव हैं, डिफरेंट विचारधारा के आने चाहिए, उनको लाना चाहिए। यंगस्टर जितने भी हैं या दूसरे तीसरे। हुआ यूँ कि मैं शाहजी के साथ काम करता था और हम एक तंबू काफ़ी हाउस हुआ करता था कनॉट प्लेस में, जहाँ आजकल पालिका बाज़ार है। तो पालिका बाज़ार में शाहजी स्कूल में सेंट कोलम्बस में पढ़ाया करते थे। मेरा भी फॉर्चुनेटली जो ऑफिस था वो 2 बजे बंद हो जाया करता था, सुबह 7 बजे से 2 बजे। तो 2 बजे के बाद हम वहाँ मिलते और जो भी गपशप और जो भी थोड़ा सोचते थे कि हम भी थोड़ा इंटेलेक्चुअल हैं, क्योंकि उस कॉफ़ी हाउस में बैठना और कॉफ़ी पीना, चाहे आपको पसंद है या नहीं है, थोड़े बड़े शान की बात हुआ करती थी। एनीवे, एक शाम को हम ऐसे ही बैठे हुए थे, एक टैक्सी कहीं वहाँ रुकी और बजाज साहब वहाँ आते हैं और लिटरली यूँ पकड़ते हैं शाह साहब को और कहते हैं चलो। उठाया 2 हाथों से, मेरे ख्याल शायद बामदेव भी साथ थे आपके हैं, हाँ बामदेव भी थे। उठा के लिटरली किडनैप करके टैक्सी में डाला। मेरे पास स्कूटर हुआ करता था, मैं इनके पीछे पीछे, और ये
मॉडर्न स्कूल में उनको लेके आ गए। मैं भी पीछे पीछे आया। मॉडर्न स्कूल में शिवपुरी साहब रहते थे, देशांतर का ऑफिस भी वहीं था। तो वो बैठे हुए, मैं तो खैर अवाक रह गया देख के कि ये हुआ क्या, मैं कहाँ पहुँच गया। तो शाहजी को एक, मुझे जो जहाँ तक याद पड़ता है, शाहजी उस समय थोड़ा कोई एलटीजी के साथ कर लिया, एक मुद्दर का कोई ग्रुप था, सरदार मुद्दर का, उसके साथ कर लिया, यूथ ऑफ इंडिया करके एक ग्रुप था, पहले त्रिशंकु वहाँ से हुआ था, तो वहाँ उनके साथ कर लिया। तो उनका यही था, ये तुम इधर उधर क्या करते फिर रहे हो, हैं? हाँ, शिवपुरी साहब क्या करते हो, यहाँ क्यों नहीं आते हो? अब उनके सामने बोलना बड़ा मुश्किल था, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, ऐसा ऑरा था कि बस बोल नहीं सकते उनके सामने, वो जो भी हैं। एनीवे, उस दिन से वो देशांतर में कुछ नहीं बोल पाए, ज्वाइन करना ही था, कर दिए। और देशांतर में उस समय कौन कौन, ये जो बताया अनुराधा ने कि हमारे लिए एक टीचिंग स्कूल था, स्कूल में ज़रा टीचर्स देखिए कौन कौन थे। शिवपुरी साहब, सुधा शिवपुरी, बजाज साहब, बीएम शाह, बीवी कारन और मीना विलियम्स, और कौन थे उस समय? मोहन महर्षि पहले जा चुके थे, वो चले गए थे मेरे ख्याल जयपुर वगैरह कहीं चले गए थे। ये सब इन लोगों से हमें सीखने को मिला। आई मीन डायरेक्टली नहीं तो जो भी वो बात करते थे, या जब इवन प्ले भी कर रहे हैं, या डायरेक्शन दे रहे हैं, या इवन डिस्कशन कर रहे हैं, इतना कुछ, इतने सारे गुरु आजकल मिलते ही नहीं। कहाँ हैं आजकल के ग्रुप्स में गुरु, कहाँ हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कोई बताने वाले हैं ही नहीं। स्पीच में शिवपुरी साहब, ओफ, मुझे मौका नहीं मिला, मैं 2-4 उनके टुकड़े ज़रूर याद करके आता और आपको बताता। एंड व्हाट ए रेंज, उन एक्टर को इतना इग्नोर आजकल कोई जानता ही नहीं है कि एक शिवपुरी एक्टर, स्टेज के एक्टर दिल्ली में हुआ करते थे, जिनका आज तक कोई सानी नहीं है, उस मुकाबले का एक्टर आज भी नहीं है। वो लोगों को मालूम ही नहीं आजकल की जनरेशन को, उनके रोल क्या, तुगलक क्या, कंजूस क्या, इडिपस क्या, आषाढ़ का एक दिन, आई मीन एक दूसरे से मेल नहीं खाता। कमाल, व्हाट ए रेंज, क्या रेंज हुआ करती, कहाँ उस तरह की रेंज कहाँ मिलती है आजकल। और आवाज़ जो अभी बताया गया कि एक बहुत ही बजाज साहब ने कहा शायद कि भाषा मतलब संवाद को लेके बहुत ज़्यादा हम लोगों का वो रहा, तो वो जो था सीखने को, मेरा ख्याल नहीं कि आज कोई भी ऐसा डायरेक्टर है या कोई भी एक्टर्स हैं जिनकी भाषा इतनी साफ और संवाद में उतना दम है। अभी तो इतना ही बोलता हूँ, आगे फिर देखते हैं क्या है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, एंड देन प्लीज़ कम इन। दो चीज़ें कि हम लोगों को उस वक्त कल से बात हो रही, हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज टू फाइंड स्पेस टू वर्क एंड टू बी एबल टू डू रिहर्सल। सो आई डू रिमेंबर कि चाहे कंजूस हो या कोई और प्ले हो, तो शिवपुरी जी का जो घर का लॉन था, विच वॉज टाइनी पीस, एनी काइंड ऑफ प्ले वॉज रिहर्स देयर, एंड सो the finding of space to be able to rehearse was a really very difficult, and actually sometimes ऐसे लगता था ये unsurmountable problem है। तो मैं बजाज साहब, बनवारी, सुदेश, and we were in a different mode, we had some special space, and that was in यहाँ एक बात कहनी ज़रूरी है कि उस समय मैं नाम लिए जिन प्रिंसिपल्स के और जिन स्कूलों की, मैं समझता हूँ कि दिल्ली की कला जगत की सूरत कुछ और हो जाए अगर ये 4-5 लोग इनायत ना करें, इनकी सेंसिबिलिटी ना होती, जिसमें प्रिंसिपल कपूर हैं, नायक साहब हैं, मिसेस कुमार हैं, एक आधे और प्रिंसिपल्स स्कूलों के थे जिन्होंने स्कूलों में न केवल जगह दी काम करने के लिए, बल्कि जो लोग प्रैक्टिशनर्स थे उनको पार्ट टाइम या फुल टाइम किसी तरह से जॉब देते थे। उनके पास स्वीकृत जॉब नहीं थी, पोस्टें नहीं थीं, क्योंकि रंगमंच या इस तरह की चीज़ कोई सब्जेक्ट नहीं था। लगभग आज भी नहीं है, वो लड़ाई दूसरे स्तर पर जारी है। लेकिन रिहर्सल की जगहें मिलना
मॉडर्न स्कूल में कितनी रिहर्सल्स होती थी, तरह तरह की रिहर्सल्स होती थी। फिर सरदार पटेल स्कूल में रिहर्सल्स होती थी। अलावा इसके सरदार पटेल स्कूल और मॉडर्न स्कूल, इसके अलावा जो भी, चाहे वो मॉडर्न नाइट का प्ले हो या थ्री आर्ट्स क्लब का हो या देशांतर का हो या आप लोगों का भी हो, तो 50 टिकट 70 टिकट एक शो के लेके बच्चों को देना और उनके पेरेंट्स के लिए देना, ये वहाँ जारी हुआ, जिसके नतीजे के तौर पर वे बच्चे तो आते ही थे देखने के लिए, उनके पेरेंट्स आते थे साथ में। इससे एक दूसरा इक्वेशन जनरेशन के साथ और एक इनकलकेटिंग द टेस्ट, ये एक तरह का एक दिलचस्पी समाज की बढ़ी। एंड these groups started getting a different kind of patronage also from different section. This is something जो कहीं इतिहास में दर्ज नहीं है, ये उन पीढ़ियों के साथ है जिनके साथ वो जाएगा। और of course Joy Michael has been pivotal in that, because she, besides being a yatrik person, she was also a teacher once in St. Columbus, St. Thomas, ये मंदिर मार्ग पर एक स्कूल था, मैं जाया करता था रिहर्सल के लिए। और then she started doing theatre for children, and she inculcated those kinds of tastes. So that was percolating, and how much it has percolated yet I do not know. It needs to be assessed. But this was very, very important process that we have witnessed, and one feels very, very obliged to those periods in that sense. Yeah, त्रिवेणी कला संगम ये नहीं, वो परफॉर्मेंस हम करते थे वहाँ, और वो हमें आसानी से हमें बुकिंग मिलनी शुरू हो गई थी। वो भी अब इनडायरेक्टली देखिए, एक तरफ हम लोगों का अलकाजी साहब से थोड़ा सा तड़का होता था, दूसरी तरफ मिसेस श्रीधरानी चूँकि स्कूल में आती थी और उनकी मिस्टर अलकाजी के साथ एक एफिनिटी थी बिकॉज ऑफ पेंटिंग एंड दोज आर्ट वर्क्स। सो शी वॉज सिंपैथेटिक टू ऑल ऑफ अस, लाइक बिगड़े हुए बच्चों के लिए, अच्छा हाँ आ जाओ, ये किराया बाद में दे देना, जब आ जाए टिकट बिक जाएगी तब दे देना, एट्सेट्रा करके। इस तरह से देशांतर ने वीकेंड थिएटर हिंदी का त्रिवेणी पर करना शुरू किया था। Of course, this was the follow-up of Yatrik's weekend theatre that Yatrik was doing already in English. So this came up like this. एक बात और भी थी, आई थिंक उस समय भी और अब भी स्पेस की बड़ी प्रॉब्लम है, ऑडिटोरियम्स बहुत महंगे हैं। उस समय भी आपका जो सबसे बढ़िया थिएटर ऑडिटोरियम था फाइन आर्ट्स, उस 700-750 रुपया मेरे ख्याल लगता था, 650-700 एनीवे, और इसके लगते थे 175 रुपये, 150 या 175 कुछ ऐसा था मेरा ख्याल है। तो ये बहुत मतलब पॉसिबल था कि यहाँ थिएटर कर सकें, लेकिन ये उस तरह का ऑडिटोरियम नहीं था, थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती थी। लेकिन एडजस्टमेंट्स थिएटर ग्रुप भी करता था, ऑडियंस भी करती थी। ये ओपन एयर थिएटर था, हमारे शोज़ कई बार ऐसा होता था कि बारिश आ जाती थी, गर्मी होती थी, और लोग ऑडियंस कॉरिडोर में खड़े हो जाते थे, कहते थे प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए, हम यहाँ से देख लेंगे। दैट काइंड ऑफ मतलब उस समय एक ऐसा माहौल बना था इस वीकेंड का, और लोग इंतज़ार करते थे कि कब समर फेस्टिवल देशांतर का आएगा वीकेंड का। और उसमें ये होता था कि कुछ तो पुराने शोज़ हम करते थे, एक या दो मेरे ख्याल नई प्रोडक्शन ज़रूर उसमें हुआ करती थी। और मैंने पहले जैसे एक थोड़ा सा रेफरेंस दिया बजाज साहब कैसे शाह साहब को उठा के लाए, इसी तरह ये और लोगों को भी लाते थे, बहुत से लोगों को लाते थे और भाई साहब से मिलाते थे। भाई साहब मतलब शिवपुरी साहब जो है। तो अब मर्ज़ी उन्हीं की होती थी भाई कौन किसको रखा जाए कौन नहीं, बट ये काफ़ी इंसिस्टेंट हो, नहीं भाई साहब ये ठीक है, ये कर लेगा, ये कुछ है। हाँ, तो एम के रैना, बंसी और भी काफ़ी सारे नाम थे। तो एक दिन वो बोले यार ये मनकोड़ी पता नहीं किस किस को उठा के ले आता है, अंकुर फंकुर पता नहीं कहाँ से ले आता है ये, यू नो ऑल दिस। ये उनका मुझे अभी तक कानों में ये याद है, ये मनकोड़ी शब्द ज़रूर
इतना वो यूज़ करते थे। आई थिंक अनु आल्सो कुछ इस पे बांगड़ू या कुछ ऐसे। तो एक तो ये कि वो जो बनवारी ने कहा, हिज ऑरा वाज ह्यूज, एंड ऑल्सो आई रिमेंबर जब हम अपने टेक्स्ट पे जैसे आधे अधूरे या कंजूस पे कुछ नोट करते थे, ही वुड लुक एट इट एंड ही सेड नोट किया है, मार्जिन में लिखा है, नो यूनिट बनाया है. सो इट वाज अ काइंड ऑफ टीचिंग. बट आई ऑल्सो वांट टू जस्ट ब्रिंग अप दैट बजाज साहब ने कहा वुल्फ्राम मेहरिंग के साथ बिल्ली चली पहन के जूता एक कोलैबोरेशन था और एक बड़ा लंबा टूर था जिसमें हम बहुत शहरों में नाटक लेके गए. It was a stylized play, and I think in a way very different from the repertoire of Deshantar. And in that, it was a long train journey from Delhi all the way to Calcutta via Chennai. And yes? Yeah, I mean, I'm saying it goes down every Bombay, Pune, all over the place. Yeah, 71 ended at the time of the 71 war. And we were mates on the journey, but Chetna and I were also roommates during the long tour. And so Chetna coming in to perform with us, and it was a very different experience to have such a long journey as well as a tour. So Chetna, come and tell us about your. हाँ, बिल्ली चली पहन के जूता, एक तो हम बोलेंगे कि जो जिस टाइम पे ओम भाई ने हमको ऑफ़र किया, स्वेच्छा से निराश्रित हम दिल्ली में रह रहे थे. तो उस हालत में एक ऐसे मतलब ओम भाई से मिले हुए थे बिकॉज ऑफ श्यामानंद, बट ऐसा नहीं था. लेकिन उन्होंने जो एक तो जैसे कहते हैं ना कि कुछ समय हम बिता सके, घर जैसा लगे, ऐसी बातें. बिल्ली चली पहन के जूता का एक्सपीरियंस हम तो सोचते हैं कि सबसे पहले वोल्फ्राम मेहरिंग में सुधा जी की फिज़िकलिटी से लेके हम सब की जो स्टाइलाइजेशन थी, हाईली फिज़िकल, ये पहले नहीं हुआ था. माने शब्द रहते हैं, लेकिन ये जो हम लोग आज फिज़िकलिटी कहते हैं उसकी नींव कितने पहले पड़ गई थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 1971. और सुधा जी अलग कर रही हैं, हम लोग अलग, मतलब कोई सीधे थे ही नहीं. हाँ, शिव भाई वो अलग. तो मैंने ये कहना है कि एक्सट्रीम फिज़िकल, क्योंकि ये वोल्फ्राम मेहरिंग जो है ये पेरिस जर्मनी के आए थे, तो एंड ऑल्सो वेरी पैशनेट डायरेक्टर. बट वो एनर्जी जिसकी बात हम कर रहे हैं कि जो शब्दों के नाटक करते थे, तो हम शब्द और अपनी स्टाइल एक्टिंग के उसमें बह जाते थे. लेकिन यहाँ फिज़िकलिटी के साथ में आपको अपने डायलॉग्स भी बोलने, और वो एक्सट्रीम है, माने सांस उखड़ जाए ऐसी फिज़िकल थी. उसकी ट्रेनिंग भी हम लोगों को करवाई जाती थी. तो ये इतना पहले होना ये बड़ी बात है. और इसके साथ में हमको तो जैसे एक सेकंड होम मॉडर्न स्कूल का मिला, माने जो शिवपुरी जी की अपनी जो घर था, तो रात में फिर बोले तुम कहाँ वापस जाओगी, तुम यहीं रह जाओ. और फिर वो हम लोग सबको ही तो खाना वाना खिलाते थे, और बाद में कहते थे कि मीठा नहीं, तो सुधा जी कहती थी बस एक केला. हाँ, वो एक केला खाओ और रह जाओ. तो फिर सुबह उठाना, जब यंग थे हम लोग तो एटलीस्ट हम उठते नहीं थे, तो सुबह उठाना 4 बजे, उठो उठो उठो, तैयार होके जाना है हम लोगों को टूर पे. ऐसी सब ये यादें. लेकिन ओम भाई की हम बिल्कुल वो कहेंगे कि ऐसे वक्त पे उन्होंने जो विधा थी, जो हम मतलब ये श्यामानंद दुबे इन सब के हाथों से बहे हुए, राजेंद्र भाई इनके हाथों के बहे हुए एकदम एक नया स्वरूप दिया और एक विश्वास दिया कि नहीं नहीं ये करो, कर सकती हो और कर ही नहीं सकती, हम हैं ना तुम्हारे लिए, गलत सलत करोगी तो बोलेंगे, हम हैं. एक ये.
और दूसरा अभी बोले शिमला के बाद में, अब उसके फौरन बाद देशांतर एक मैक्स मुलर भवनी, ये बिल्ली चली पहन के जूता भी मैक्स मुलर के ही तत्वधान में उन्होंने, और अनु पहली बार हम लोग फर्स्ट क्लास यहाँ से चेन्नई से यहाँ, अरे ये तो हम ये रवि बासवानी, ये नहीं बज्जू जरा बनवारी, ये लोग हम लोग 4 जो हैं वो ट्रेन का दरवाज़ा खोल के माने ये हमारे लिए रईसी थी कि भाई फर्स्ट क्लास कूपे में हम लोग जगह मिल रही है और दिनों दिन हम ट्रैवल कर रहे हैं। इसने एक बहुत है, हाँ लो, That was, since this was a scheme, it was worked out that पूरे 1 महीने के लिए वो बोगीज रिजर्व थी, वो कटती थी, हम लोग नहीं उतरते थे, वो जिस स्टेशन पर उतरते थे वो बोगी वहाँ रहती थी. वी यूज टू लिव देयर और इन द होटल. इट वाज अबाउट 32 days or 34 days tour from. ये भी बताइए बजाय कि ये प्रोजेक्ट दिशांतर को ही क्यों मिला और कैसे मिला, थोड़ा सा, क्योंकि बाहर का डायरेक्टर आ रहा है और इतनी बड़ी टीम, मतलब या तो उस वक्त किसी और प्ले के किसी और नहीं, अब ये तो दिस इज ऑलवेज गुडविल वर्सेस गुडविल ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड द पीपल, क्योंकि यहाँ शिवपुरी सुधा इस तरह के लोग थे, उसके लिए शायद मिला होगा. वी कांट assume it and neither can it be a comment on anybody else in any case. So this happened and we proved it up and we lived up to it and learned quite a lot out of that. Okay. एक दो यादें मुझे उसकी याद हैं. एक हमारे दोस्त हुआ करते थे शंकर तायल, शायद वो भी थे उसमें, थोड़े से सेहतमंद थे, तो खाने के बगैर वो रह नहीं सकते थे, और स्टेशन जब कोई भी आता था वो ज़रूर उतरेंगे और कुछ ना कुछ वहाँ खाएंगे. और एक बार खाते खाते ट्रेन छूट गई उनकी और वो रो रहे हैं वहाँ, कुछ करके वहाँ खड़े. अब मुझे ये याद नहीं है पूरी तरह कि वो उनको किस स्टेशन पर कैसे दोबारा से उस ग्रुप में शामिल किया गया, बट ये एक वाक़या. और एक वाक़या और बजाज, ये भी इसी ग्रुप के दौरान हुआ था कि जब देशांतर को मिलती मिलती ग्रांट किसी और ग्रुप को चली गई थी, है इसी के वक्त हुआ था ये. सभी ग्रुप के साथ बनवारी होता है ये. नहीं, ऑलमोस्ट हम तो सेलिब्रेट भी कर लिए थे ये ट्रेन में, और फिर पता चला कि नहीं ये कुछ हुआ है. और फिर बाद में बज्जू भाई का एक कमेंट भी था, भाई ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे ग्रुप की उम्र जो है वो 2 या 3 साल है और वो बहुत पुराना ग्रुप है. और इस अच्छा, इस ट्रिप में बजाज साहब ग्रांट की स्कीम शुरू हुई थी, यहाँ बात थी कि यहाँ मिलेगी नहीं मिली, वो इट वेंट टू LTG एंड देन ये भी तो हुआ ना कि हमारे ही ग्रुप में शाह जी थे, दे नीडेड समबडी टू बी द डायरेक्टर एंड सो शाह लेफ्ट देशांतर एंड वेंट टू LTG. सो दीज थिंग्स डू हैपन. थिएटर का तो नुकसान नहीं हुआ. ओके. मैंने कहा इस ट्रिप के दौरान बजाज साहब को मेरी वजह से काफ़ी डांट खानी पड़ती थी, क्योंकि शाम को जब प्ले ख़त्म हो जाता था तो मैं 2-3 लड़कों के साथ लेकर के उनको गाड़ी उठा लेते थे हम, जो हमारे यूनिट की गाड़ी थी, और लेके चल देते थे, घूमते रहते थे. और जैसे ही मैं वापस आता था तो शिवपुरी और बजाज, एक तरफ से बजाज शंटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से शिवपुरी, और जैसे ही मैं वापस जाता था, मनकुड़ी तेरा आ गया तेरा दोस्त, जा संभाल उसे, तो ये कह के बजाज साहब को डांट पड़ती थी. काफ़ी बार ये हुआ. बोले क्या वापस? हाँ. तो अब उसके बाद बिल्ली चली पहन के जूता के बाद में ओम भाई ने कहा कि चलो शिमला की वर्कशॉप करेंगे. ये मैक्स मुलर भवन की हो रही थी. अनु थी, राजेंद्र भाई भी थे, और कौन नहीं था, दुबे आए थे उसमें, अजितेश बंदोपाध्याय, मतलब द नोन डायरेक्टर्स, और वॉल्फ्राम मेहरिंग, जो हाँ 6 ग्रुप्स सेलेक्टेड हुए थे. हाँ, डायरेक्टर कैन चूज टू एक्टर्स, तो उसमें से एक हमको चुना गया. हमने सोचा हम ओम भाई के अंडर में करेंगे.
अब ये राकेश जी का कुकुर मुत्ते मशरूम, तो वो पहली बार नॉन वर्बल थिएटर, और उसमें कोई लाइनें नहीं है, जस्ट तो वो तो तुम बोलो ना साथ साथ में। क्षत्रिया नाटक वहाँ डेवलप हुआ था। हाँ, छतरिया नाटक, तो सबों की अपनी अपनी छतरियाँ, अपने अपने मशरूम के कॉन्सेप्ट। अब जो मैं कह रही हूँ कि मैं तो पूरी आशा से ओम भाई के गई थी, ओम भाई ने धकेल दिया हमको दुबे के, क्योंकि ये भरी सभा थी, जैसे गोटे नहीं होते हैं, ए ये हमारा, ए ये हमारा, तो उसमें दुबे ने कहा ये हमारी, और हम दुबे, अब हम इधर उधर देख रहे हैं, यार हमको तो, हम तो इनके भरोसे आए थे। अब ये दुबे के अंडर में, क्योंकि दुबे एक नाटक पहले कर चुका था हम लोगों के साथ, तो हमें बहुत डर था उससे। हमने कहा ये अब बोल नहीं सकते बिकॉज द एज डिफरेंस, एंड ओम भाई को कौन हाँ ना को बोल ही नहीं सकते। बहरहाल हम ठेल दिए गए दुबे के पास। अब क्या हुआ कि राकेश जी को खबर लगी कि ये बड़े इंटीमेट थिएटर, ये लोग कुछ दरवाज़ा बंद करके इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में कर रहे हैं। तो अब उन्होंने शाम को बोला, जब हम लोग मिले, कि कल मैं रिहर्सल देखने आऊँगा। अब दुबे के तो कान खड़े हो गए, बोला कि अब क्या करें। देखो चेतना, मैंने पहले ही कहा था मैं बलिया का आदमी हूँ, और तुम अभी अमेरिका की ट्रेनिंग लेके आई हो और लगी हो पिली हो हमारे ऊपर। ये स्त्री पुरुष के उसने कॉन्सेप्ट लिया था, एंड सेक्सुअली डिससेटिस्फाइड स्त्री बीन एक्सप्लोर्ड फिजिकली। सो यू कैन इमेजिन what was the liberation in the year 1971। अच्छा, हम यंग थे, हमको आगे पीछे पता ही नहीं, हम बोले ऐसा ही तो होता है, तो क्यों नहीं दिखा सकते, हम लोग दिखा सकते हैं, और तुम इतने बड़े डायरेक्टर हो। अब वो राकेश जी उसमें जैसे यहाँ जज की तरह, यहाँ सामने हम दोनों अपना कर रहे हैं। देखो दुबे, ये बहुत करीब हो गया, ये ठीक नहीं है, ये श्यामानंद को अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग उनको तो खैर विदा किए, फिर हम लोग सोचे इसमें श्यामानंद कहाँ से आ गए। हम लोग यहाँ आर्टिस्ट, मतलब उन दिनों का कितना एकजुटपना आज नहीं हो सकता। आज कोई ऐसी बातें नहीं करेगा, ऐसी दोस्ती की या ऐसी उसकी। बहरहाल हम लोगों ने किया, और वो इतना ज़्यादा हम लोग के लिए अपने जो अंदर की सूत्र है वो काटने में इतनी मदद हुई। दुबे ने फौरन जाके अबे बेवकूफ़ किया, विच वॉज हाईली फिजिकल। ही हैज़ नॉट डन इट, ही एक्सेप्ट्स till the last moment that it happened because what we were there in the process discovering, उस डिस्कवरी से अबे बेवकूफ़ हुआ। बाद में कुछ हमारी डांस थिएटर में क्रिएशन हुई जिसका वीडियो उसने देखा, उसका अम्मा यार इतने साल बाद में वही हो रहा है, तुम इतना क्या ट्यूबलाइट हो जो 10 साल के बाद में तुमको। हमने कहा ये कहने का मतलब ये कि कैसे अपने अंदर से उसने इतना डीप प्रभाव डाला कि वो हो गया। और राकेश जी की एक बार बस बंद, और राकेश जी आखिर में बोले कि यार हो तो रहा है अच्छा, अब हमें कुछ लाइनें लिखनी पड़ेंगी। तो हम वो बोले बिल्कुल, आप हमको फिर लाए, खुद ही लिखा हुआ, और तुम भी वही। अच्छा, ये पूरी चीज़ हमको तो लगता है आषाढ़ का एक दिन की मल्लिका या लहरों के राजहंस की सुंदरी, ये सब एक ही है, और आधे अधूरे की सावित्री। ये लाइन थी कि फिर भी तुम वही के वही, इस तरह भी उस तरह भी, वही के वही, फिर भी तुम वही के वही। तो मुझको लगता है कि ये पूरा उन्होंने सारी मैन वुमन रिलेशनशिप का जो उनका बेस रहा होगा उस समय खोला, और बोले कि तुम अब इसको आखिर में बोलोगे। ये प्रोसेस था, और इट वाज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। एटलीस्ट मेरे लिए, दुबई के लिए तो अब चला गया है, कैसे पूछे, लेकिन ये एक मतलब एक बहुत रैडिकल अप्रोच इतने पहले हो चुका था। शिमला वर्कशॉप में राकेश जी का, मेहरिंग साहब का और बाकी के लोगों की शिरकत के बाद राकेश जी के जो छोटे नाटक उसके बाद आए हैं, बहुत बड़ा सवाल एंड बीज नाटक, शायद हाँ, एट्सेट्रा, देयर हैज़ बीन अ डिफरेंट इडियम इन हिज राइटिंग इमीडिएटली आफ्टर यू सी
Shimla workshop. Now where it would have led I don't know, लेकिन उसके लक्षण दिखते हैं और इस दृष्टि से कई बार हम लोग बहुत शुद्धतावादी होते हैं, लेकिन ये इंटरैक्शन collaborations of different styles and methodology should carry on, और उसके spaces हम लोगों के थिएटर में बहुत कम रही हैं, आज हो रही हैं, उसकी तरफ हमारी नज़र इस तजुर्बे के बाद ज़्यादा खुलनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ. आई थिंक अनु यू शुड लुक एट इट particularly because you acted Rakesh Memorial Festival में for Rati, and that was also the play written by Rakesh ji, having worked in Aadhe Adhure and doing that kind of. What do you feel? Well, my own memory was that was the first time I had the opportunity of working with Rati, and I want to say that Rati was a figure that was actually a link between a lot of groups at that time, and lots of young students from the university or people just out of the university, even schools. So she directed these two short plays, and I had the opportunity of acting with Rajendra Gupta at that time. But one of the things that what Bajaj is helping us all remember was the fact that there was a spirit of trying to do different things in different vocabularies and languages, so that we all felt that many aspects of which we were not actually, immediately connected, हमें उसकी opportunities मिली काम करने में. But मैं एक चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, was the fact that we were talking, what was the lowest, I'm moving very into another area, but we'll come back. What was the highest denomination ticket in Triveni? I think it was पाँच. दो और पाँच? हाँ? मुझे 2 और 5 याद है. 5. 2, 3, 5 उस वक़्त होता था. फिर उसके बाद में हमने, मुझे याद है कुछ टिकट शायद हमने 10 रुपए और 15 रुपए के भी की. डिस्कशन के बाद 10 और 15 हुआ था. लेकिन ये ज़रूर हुआ था कि उसमें वहाँ पर भी आधे अधूरे को लेकर के कुछ टिकटों की मारामारी होती थी, और कपूर साहब के यहाँ जाते थे लोग कि कुछ टिकटें हमें दिलवा दीजिए वगैरह वगैरह, ऐसा चला था. एक बात मैं फिर से देशांतर पे आऊँगा, कैसे वहाँ काम होता था हम लोगों का एंड ऑल दैट. उसमें जैसे शिवपुरी साहब का ही था, वही सब कुछ डिसाइड भी वही करते थे और उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता था. तो दूसरों के लिए प्ले करना, डायरेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता था. हमारा जो ये फेस्टिवल हुआ मोहन राकेश का, तो उसमें मौका मिला बजाज साहब को पहली बार आई थिंक डायरेक्ट करने का, या उससे पहले भी डायरेक्ट कर चुके थे आप, हैं? I never wanted to direct. स्कूल में भी जब स्पेशलाइजेशन की बात आई थी तो अलकाई साहब ने कहा था यू शुड टेक डायरेक्शन. मैंने कहा नहीं सर, मैं तो एक्टिंग ही करूँगा. तो मैं डायरेक्ट करना ही नहीं चाह रहा था. और वहाँ कारण जी डायरेक्ट करते थे, शाह जी डायरेक्ट करते थे. ये और बात हुई कि जब मैंने कहा कि भाई साहब राकेश जी के लिए कर रहे हैं, और ये प्ले उस वक़्त धर्मयुग में छपा था, बुक फॉर्म में आया नहीं था. बहुत बड़ा सवाल. और वो थोड़े से परेशान भी थे, बहुत सारे झंझट भी थे एक्टर्स के जुटाने की. अच्छा तो फिर तू कर ले. मैंने कहा बहुत बड़ा सवाल, एक नया तेवर आया है राकेश जी का, तो ये छोटे नाटक हमें राकेश जी के इसमें शरीक करने चाहिए. उन्होंने कहा तो फिर तू कर. हाँ मुझे याद, ठीक है. तो शाह जी ने और आपने कहा कर ले. उनका ठीक कर लेता हूँ. मैंने डरते डरते एक्सेप्ट किया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसलिए कि ये छूटना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए. ये बात उसमें प्रमुख थी. एंड शिवपुरी वॉज नॉट वांटिंग टू टेक ऑन मोर एट हिज हैंड एट दैट टाइम. दैट कुड आई ऑल्सो सी. ऐसा नहीं था कि वो निगेट कर रहे थे. दैट्स माई असेसमेंट. And also Shaji as well as Karan ji. हाँ, तो एक तो ये थोड़ा छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद है. एक और याद था, क्योंकि शिवपुरी साहब का बोलबाला था सिर्फ ग्रुप में ही नहीं, बाहर थिएटर में भी.
अब एक प्ले हुआ कभी चित कभी पट, कारण साहब ने डायरेक्ट किया, शिवपुरी साहब एक्टिंग कर रहे थे, वीएम शाह भी एक्टिंग कर रहे थे, और लोग भी एक्टिंग कर रहे थे उसमें। हाँ, आप आदमी, मेन आदमी जो लेखक का कर रहे थे। एनीवे, तो अगले दिन जो रिव्यू आते हैं, ये सिर्फ ग्रुप वाले ही उनके और से परेशान नहीं थे या उनसे वो नहीं थे, बाहर क्रिटिक्स भी थे, क्योंकि देशांतर का मतलब होता था ओम शिवपुरी। रिव्यू आता है डायरेक्टेड बाय ओम शिवपुरी, नॉट बाय कारंत, इट वाज डन बाय कारंत। तो मतलब ये भी एक उस वक्त का है। और एक और वाकया था कि हायवदन का ऐसा था कि वो प्ले मिला हुआ था, शिवपुरी साहब को करना था, और शिवपुरी साहब बहुत कीन नहीं थे उस प्ले को करने को, या वो थोड़ा घबरा रहे थे, या उनकी कुछ कमिटमेंट थी बॉम्बे में, हैं। हाँ, वो बाद में आप बताइएगा, पहले मैं अपनी बात कर लूँ। तो उन्होंने थोड़ा सा स्क्रिप्ट पढ़ा, थोड़ा सा देखा, एक उसमें कुछ थोड़ा सा हेल्दी आदमी चाहिए, एक थोड़ा दिमागी आदमी चाहिए। तो क्या हुआ, एक दिन वो एक्टर्स को बुलाया उन्होंने, और उनकी कमीज़ें उतरवा के देख रहे हैं कि किसके ज़रा मसल ज़्यादा हैं जो कपिल का रोल कर सके, जो थोड़ा सा उस तरह का कैरेक्टर है। तो बात बनी नहीं, और फिर पता नहीं क्या हुआ उसमें, ये के बीच में उन्होंने कैसे छोड़ दिया और कैसे कारण साहब को मिला, ये बजाय साहब बताएंगे। No, he was not able to decide how to change the Kapil and Devdutt after the beheading and कैसे transfer होगा, इस बारे में सोच में he didn't pay much attention. Meanwhile, much time went, and since the script I had gotten from गिरीश जी for देशांतर, तो रविंद्र भवन के ही लॉन पर गिरीश ने एक बार बुला करके मेरे से कहा, बजाज एक काम कर सकते हो क्या? मैंने कहा क्या? कि ये है वतन, अगर कैन यू समहाउ एडवाइज इन योर ग्रुप दैट इट शुड बी डन बाय मिस्टर हबीब तनवीर इंस्टेड शिवपुरी। आई सेड कि गिरीश जी, मुश्किल ये है कि अभी अभी मिस्टर अलकाजी ने हमारे साथ हिरोशिमा किया है, हमारे पास साधन बहुत कम हैं, अलकाई साहब ने हमें बड़ी मलामत की, कुछ भी बोल देते थे, तो अलकाई साहब तो हमारे उस्ताद हैं, अगर हमें वो कुछ लात भी मार देंगे तो ठीक है, हम सह लेंगे, लेकिन अभी हम कुछ करें और किसी तेवर में कुछ गड़बड़ हमसे हो जाए एज ए ग्रुप, और हबीब साहब ने हमें कुछ कह दिया तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, सारे सम्मान के बावजूद ये नहीं हम बर्दाश्त करेंगे, इसलिए ये नहीं हो सकता। लेकिन what is your concern? So he said that since it is primarily music is a major part of it, therefore, in that case, why not Karant? Karant at that time just had done senior Karant के साथ कोई प्रोडक्शन हुआ था, हाँ, यक्षगान का, उसमें वो असिस्ट कर रहे थे, और उसी समय उनका वो चौमाना दुड़ी फिल्म हिट हुई थी, उसको अवार्ड मिला था, चौमाना दुड़ी को वो था, एंड देयरफॉर ही सेड कि ओके कारंत। तो फिर मैंने शिवपुरी जी से कहा और कारंत जी ने एक्सेप्ट किया, एंड दैट इज़ हाउ हैवदन वाज ट्रांसफर्ड टू कारंत जी, एंड कारंत जी डिड अ वेरी बिग जॉब ऑफ इट। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? We've often talked, one of the things that I think Deshantar functioning out of modern school was also this, that many young people who came out of modern school, for instance, and going into college, were given an opportunity to perform. That boy in Kanjus is Wahi. Photograph? Yeah, you had this, wanted to talk about this transfer of students into theatre and students. You said you wanted to talk about the fact that काफी एक्टर्स मॉडर्न स्कूल के आए और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। मैं सॉरी हम भूल गए, अभिराम सेठ has been a very integral part of Deshantan and did many roles, and then he is now having his own क्या मॉडर्नाइट ग्रुप या अग्रदूत वगैरह में। But there was a transfer also from young people from university.
from the players, for instance. उस समय सारे लोग या तो अभियान जाना चाहते थे या देशांतर आना चाहते थे, इस तरह का था। Right. सारे actors। सॉरी, you want particular point? Yeah, you wanted to say something about this and education. अभी मेरे जहन से उतर गया। तो फिर एजुकेशन हाँ नहीं, I was just मेरा ख्याल है, for instance, Bajaj साहब at that point also was working for a while in modern school and working with young students, and some of the young students then went from school to drama school, but also a long relationship became with children's theatre and working with it. And one was Karthik. हाँ बताइए। अनामिका, अक्सर एंड कार्तिक, ये लोग सारे, एंड वो ड्रामा स्कूल में तो नहीं आया अभिनव चतुर्वेदी, हाँ, दे वेर ऑल यंग स्टूडेंट्स इन द चिल्ड्रन थिएटर एंड देन दे वर्क विद देशांतर। और एक कहानी भी विशेष करके सर्वेश्वर जी की लड़ाई कहानी, एक सच्चे आदमी की मौत, इस पर प्रोडक्शन किया था शिवपुरी ने, उसमें ये सारे बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें अनामिका वाज वन ऑफ द मेजर कास्ट। तो दैट वाज अ ट्रांसफ़र, एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक दैट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में टाई का खुलना, छोटी चीज़ों, छोटे बच्चों के साथ का थिएटर होना, ये इम्पॉर्टेंट होता है। इट नीडेड टू फर्दर। आपने सवाल उठाया था about मोहन राकेश से कोई खास कनेक्ट था in the rehearsal process, आधे अधूरे की। तुम बताओ। कनेक्ट तो ये था कि जब हमने काम शुरू किया तो फ्रॉम डे वन ही वॉज इन द रिहर्सल रूम, एंड एट दैट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस it was a very interesting idea that the person who has written the text, who is being told, I mean in a way who's immediately talking to the people who are supposed to act it out, तो उनके जो कभी कभी instructions apart from शिवपुरी, he would say आप इसके बारे में सोचिए, you have to think how old you are, you have to think, for instance ऋचा व्यास उस वक्त जो किन्नी का रोल करती थी, उनको बहुत डिटेल में he would tell about what he wants the girl to do. He gave, I mean I was fortunate to get a lot of detailed instructions, किस तरह से आप चलना है, किस तरह से चीज़ का डब्बा खोलना है, not just शिवपुरी but राकेश जी। So I mean in memory मुझे ये बहुत interesting लगता है कि at that time playwright and director were in dialogue, and playwright and director were also daily dialogue with the actors. So for me I think it's an experience of thinking that texts don't necessarily come in one way to the actor, they come in many ways. तो ये कि डायरेक्टर शिवपुरी जी हमें एक तरह से टेक्स्ट के बारे में, सब टेक्स्ट के बारे में, राकेश जी एक तरह से कॉन्टेक्स्ट के बारे में और लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, ही वुड कॉन्स्टेंटली कॉमेंट। ऑल्सो फॉर मी इट्स इंटरेस्टिंग दैट कोई अथॉरिटी का प्रॉब्लम मुझे कभी लगा ही नहीं उसमें। It seemed very much a collaboration for us, but it was actually an acting school for us with two teachers. One totally on subtext and the other totally on, also not totally, but very much on the dialogue and the way that it was delivered. So it was a very special experience, I think. नहीं वो अनु, ये वैसे आधे अधूरे की बात नहीं, हम एक वो इसी में रिकाउंट करते हैं कि जब राकेश जी ने श्यामानंद के प्रोडक्शन में लहरों के राजहंस में काम किया, सेम चीज़, अरे हम लाइन अपना बोल रहे हैं भैया, कॉमा थोड़ा और बाद में लगा दिया। हमने तो सारी रात जाग के इन कुछ 4 लाइनों को लिखा था। तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि ये जानो कि कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पर पंक्चुएशन और क्या मार्क्स है, उसके पीछे भी वो कितना बोल रहा है, कुछ पता है तुम्हें? तो देखिए एक यंग उम्र में ये बहुत चीज़ें लाइनों की तरह आपके घुस जाती हैं अंदर। तो ही वॉज सो पर्टिकुलर कि जो जिस जगह आपको हाइफन बोला है, और बोले पहले सोचो कि क्यों मैंने वहाँ हाइफन दिया, क्यों मैंने कॉमा दिया, और कहीं भी दे सकता था।
तो ये बातें जो अब याद आती कि जो अनु बोल रही है कि डायलॉग डिलीवरी में राकेश जी खुद अपने शब्दों को कितना चयन करके करते थे, और उतना ही, नेवर रिपीटिंग, मतलब एक आइडिया को रिपीट नहीं करना, ये बड़ी बात है। इसी पे आई थिंक अनु आप कुछ बताइए। हम सुधा को भूल रहे हैं। सुधा भी शिवपुरी से कम नहीं थी किसी भी माने में। और ये जो बात चेतना ने कही कि एक कॉमा भी इधर से उधर, आपको याद होगा आधे अधूरे की पहली लाइन हो जितनी बार लिखा हुआ है, सुधा ने आई थिंक उतनी ही बार बोली वो। ज़रा कुछ उसके बारे में बताएं तो। उतनी ही बात। थोड़ा सुधा के बारे में कुछ बताइए, उनके रोल्स के बारे में। ये तो आप जैसे आप कह रहे हैं, वो तो मुझे भी आज याद है एज देयर स्टूडेंट, एंड दे वर बोथ माय गुरुज। बट के अगर लिखा है तो वो वही उतने ही, with that sort of pause, that sort of energy. But I would like to just say she was one of the kindest people backstage. I mean, for all of us, हमारी सारे costumes को वो ही रिचा का skirt है तो she would look at it, tie up, put the hooks, whatever detail, everything in the backstage she would look after. So in a way, that is also made a kind of family that we could all travel for months and months together, and she would look after all of us young people with huge love, and also non-stop to give suggestion. Is it not? प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स के बारे में सुदेश जी, आफ्टर दैट After the long travel, Sudesh, together. सुदेश जी, Yes. you had experience in हमारा जो कन्नड़ फेस्टिवल हुआ था, नहीं, also the long travel. ट्रैवल के अलावा उसमें भी स्टेज मैनेजमेंट तो ये हाँ। करते रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। बस इतना ही है। मैं डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा वो करता था। ये एक आध बार शायद मेरा झड़प भी हो गई किसी से कि सेट डिज़ाइन करके, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, NSD के ही थे, उन्होंने सेट डिज़ाइन करके भेज दिया था और एग्जीक्यूट करना था। तो उसमें एंट्री और एग्ज़िट का वो भूल गए, उन्होंने मार्क करना भूल गए। तो मैंने उनको जाके कहा, तो वो काफ़ी खफा हुए कि साहब मैं NSD का ग्रेजुएट हूँ, आप मुझे बता रहे हैं। मैंने कहा साहब मुझे ये बता दीजिए कि एक्टर्स एक्ट्रेसेस कहाँ से निकलेंगे बाहर, बना हुआ आप ले जाइए, आप इसको करवा लीजिएगा। ये करके इवेंचुअली देन आई हैड टू सिट विद द डायरेक्टर, उनके साथ कह के डिसाइड करके कि कहाँ क्या करना है वो किया था। ये इस तरह की चीज़ें बहुत होती रहती थी। और टाइम का हमारा इधर से शिवपुरी से भी था कि अगर 6:30 होना है प्ले, तो पूरे 6:30 बजे, उस समय अगर किसी ने कुछ कहा है कि मैं 2 मिनट में रुक जाओ, अभी 6:30 होना है तो 6:30 होगा, कर्टन खुल जाएगा। तो ये झड़पें हमारी थोड़ी अक्सर होती थी वहाँ। और बाकी देवर ऑल ट्रेंड पीपल, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। डिसिप्लिन के प्रॉब्लम, जब आप सबको डिसिप्लिन पे रखते थे, उसके बारे में बताइए। तो हाँ, डिसिप्लिन का ये होता था कि जो सामान कहीं जहाँ भी रख दिया है उसको कोई दूसरा आदमी उसको टच ना करे, परेशान ना करे, क्योंकि अल्टीमेटली जब उसकी एंट्री है या एग्ज़िट है तो वो आदमी अपना प्रॉपर्टी वहाँ से उठाएगा और चला जाएगा, नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मैं उसको यही कहा करता था कि उस एरिया को आप जिसका एरिया है मार्क कर लीजिए, उधर फालतू लोग नहीं जाएं कोई। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। बाकी मेरे जहन में अभी कुछ नहीं आ रहा।
मुझे इसी इंसिडेंट से कुछ याद आ रहा जहाँ इनका झगड़ा हुआ था। हुआ यूँ था कि उस समय ये कन्नड़ फेस्टिवल हो रहा था। एक वक्त तो इन्होंने, बजाज साहब ने बताया कि अलकाई साहब बड़े थे कि उन्होंने इजाज़त दे दी थी और कॉस्ट्यूम वगैरह भी दे दिए थे एंड ऑल दैट। उस समय वो भी तुगलक कर रहे थे जब हमारा तुगलक हो रहा था। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उन्होंने ये कह दिया कि पहले तो मेरे ख्याल मना किया, मना नहीं हुआ, हमारा अनाउंस हो चुका था। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप हमारा सेट डिज़ाइन बाय अलकाजी साहब था, तो उन्होंने कहा आप हमारा सेट यूज़ नहीं करेंगे, और सेट यूज़ नहीं करेंगे तो फिर कॉस्ट्यूम भी नहीं मिले उसके। तो वो एक थोड़ा सा हुआ था उस तब उस मुझे याद है। अब बज्जू हंस रहे हैं। देखिए, जब इस तरह की यात्राएं होती हैं, इस यात्राओं में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, और इन बातों को यही कहना चाहिए कि वैसे तो हम गुज़रे हुए ज़माने की बात करते हैं, लेकिन गुज़रे हुए ज़माने का तज़किरा ही क्या गुज़र गया, अच्छा गुज़र गया, और उसमें से अच्छा क्या था उसको हम ज़्यादा याद रखें। क्योंकि जैसे अलकाजी साहब हमारे उस्ताद थे, हमारे जितने उनसे झगड़े हैं और जितनी मोहब्बत है, ये हम आज तक पेश नहीं पाए कि कौन सा ज़्यादा आगे है। तो ये बात हम नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है मैं समझता हूँ कि कुछ ख़ास सवाल अगर हमारे जहन में होंगे, हम लोगों को याद होंगे, तो कर सकते हैं। हमारी निर्देशिका कह रही हैं कि अब सभा को आगे उधर तक जाया जाए। हाँ, ठीक। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश है, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का ग्रेजुएट हूँ। सर, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत देशांतर के पूरी जर्नी से निकल करके आ रही थी। एक चीज़, मतलब दो तीन सवालात हैं, लेकिन मैं उनको कोशिश करूँगा कि दो चीज़ों में। एक तो ये कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रमोशनल स्कीम के बारे में आपने जैसे बात करी, जैसे शिमला में जो एक वर्कशॉप हुई जिसमें आप कह रहे थे कि हर ग्रुप से दो दो लोग आए और डायरेक्टर आए और फिर उसमें इस तरीके का एक कोलैबोरेटिव वर्क हुआ। तो ये भवन की स्कीम थी हुआ। तो एक ये जो कोलैबोरेशन का जो आइडिया था उस वक्त, जैसे नाटककार और निर्देशक के बीच में इतना गहरा रिश्ता और लगातार वो रिश्ता, ना कि केवल स्क्रिप्ट देकर के चले जाना बल्कि उसके रिहर्सल में भी एक पूरा सरोकार रहना, तो उस रिश्ते को आप अभी के परिदृश्य में कैसे देखते हैं? एक तो उस कोलिब्रेशन एज ए लाइक ए कंप्लीट थिंग, एज ए होल थिंग, और दूसरा एक ये कि एक बहुत सीधा सवाल कि आपने इतने लंबे समय तक सस्टेन किया अपनी परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियां भी आपसे रूबरू हैं, तो कोई एज ए अग्रज और एज ए पर्सन जिन्होंने इतना एक बड़ा ग्रुप चलाया, किसी तरीके का सजेशन आप मतलब यंगस्टर्स के लिए देना चाहेंगे क्या? कि नहीं, ये एक तो नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि कोई। ठीक है, थैंक यू। नहीं, आप अपने वक्त में ज़िंदा हैं और आप अपने ढंग से ही उसका रास्ता निकालेंगे। हम उसके लिए कुछ कहें आपसे या हमें कोई कहता, उस समय तो हम कहाँ मानने वाले थे, वैसे ही आपको भी नहीं मानना चाहिए। सिर्फ इतना ही मैं कह सकता हूँ कि ये इस तरह का कोलैबोरेशन था कि एक ही स्क्रिप्ट एक थी, राकेश जी ने एक स्क्रिप्ट लिख करके दी, 5 निर्देशक थे और 5 निर्देशकों के साथ उनके चुने हुए 4-5 अभिनेता थे, और हर एक को उसी स्क्रिप्ट का एक साथ शो दिखाना है। तो अब तो ये ऐसा है ना कि किसी समय समस्या पूर्ति होती थी, शायर लोग का कंपटीशन होता था, वैसे ही ये कि एक सब्जेक्ट है, एक स्क्रिप्ट है, उसको 5 बड़े निर्देशक उस वक़्त के चुने हुए अपने चुनिंदा एक्टर्स के साथ करके दिखाएं कि कितना अलग और किस ढंग से किया है। तो इस तरह के होने चाहिए। बल्कि कई बार ये भी होता है किसी फेस्टिवल में कि एक नाटककार का एक नाटक कई तरह के क्यों, एक ही लेखक के कई नाटक आ गए या एक नाटक की कई प्रस्तुतियाँ आ गई, बल्कि ऐसे भी होने चाहिए कि एक नाटक है, कई निर्देशक हैं और तरह तरह के प्रोडक्शन है, ऐसे सामने आए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि नए एक्सपेरिमेंटेशन हो सकें, नए रास्ते खुलें। क्योंकि हमें अपने मीडियम के बारे में चिंता करनी चाहिए, और मीडियम के बारे में नहीं, मीडियम के साथ साथ उसके द्वारा
कहा क्या जा रहा है। उस तरह से ये भी सोचा जाना चाहिए कि इस एंटायर पीरियड में सारे ग्रुप्स ने किस तरह की बात की, क्या वो इतिहास पृथ्वीराज रासो करते रहे या कुछ नई बातें भी, नए समय की सोच के बारे में भी नाटक किए गए, नहीं किए गए, ये सब भी सोचा जाना चाहिए था। इसकी तरफ सोच कम रहा। हम कहेंगे कि हमारे ग्रुप्स में भी इस तरह का काम बहुत आगे नहीं हुआ कि हम अपने समय की चिंताओं को देख सकें। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली theatre by itself is not the objective. Theatre is after all a medium. It's a form, and form is not the last thing. Okay, and that's my answer to you. I'm just interested in knowing कि उस समय में जब आप लोग इतना एक्सपेरिमेंटेशन भी कर रहे थे और जहाँ पे टेक्स्ट का महत्व बहुत ज़्यादा था, और एज अ डिज़ाइनर आई वांट टू नो कि आप लोगों का डिज़ाइन की तरफ क्या, और उसके साथ और कोलैबोरेटिव वर्क अगर था तो डिज़ाइन के प्रति आप लोगों का क्या दृष्टिकोण था और क्या एक्सपीरियंसेस रहे थे, not only with sets but with lights and with costumes and with all forms of expression, especially when you say that you even went into physical theatre. Did you go into other aspects of at that time? दुबे का कहना था कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसमें हमको कोई फ्रिल्स नहीं चाहिए। आई डोंट वांट, साड़ी का तो सवाल ही नहीं है। इसे चेतना तो अमेरिका से अभी अभी जो अपना टाइट्स लाई हो वही पहनोगी। तो हम बोले, हमको भी अजब लग रहा था कि यार ये टाइट्स पहना, अच्छा तुमको इतना है ना, अच्छा एक स्कार्फ निकालो। तो बस एक कमर में, बट दैट वाज अ बोल्ड बोल्ड पैटर्न स्कार्फ, बस दैट इज़ अबाउट ऑल। मगर उसके पीछे उनकी भावना थी। ये नहीं कि मैक्स मुलर ने सुविधा नहीं दी थी कि आप उसी समय शिमला में दर्जियों को बुला ले। 10 दिन की थी ना वर्कशॉप, आराम से हो सकता था। बट उनकी जो डिज़ाइन थी वो ये। और दूसरी बात बताते हैं कि हाउ अ डायरेक्टर लाइक दुबे ऑल्सो एंड मैनी दोज हु गेट अफेक्टेड बाय प्रॉप्स। तो आखिर के सीन थे जहाँ वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दिखाना था, तो दुबे ने यार्ड्स एंड यार्ड्स ऑफ रेड क्लॉथ विच मुड़ता नहीं था, वो खड़ा था, पूरे बंडल जो कपड़े का बंडल है, एंड ही सेड इसकी तुम प्रैक्टिस करो कि धीरे धीरे उसको तुम इंट्वाइन कर रही हो अपने शरीर से, and you feel the whole feeling. शब्द नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन वो लाल रंग का कपड़ा है, तो काले रंग की टाइट्स, फिर वो लाल रंग का अपने चारों तरफ बांधना, और हर बांधना तुम्हारा अलग होना चाहिए, एक जैसा नहीं। तो यहाँ आता है कि कहाँ कला और ये जो उसकी डिज़ाइन, एंड ही unabashedly told me that this I have taken from Martha Graham. I have seen, and it affected me so deeply that I wanted to replicate. Here I get this opportunity. And look at the magnanimity of the director. एक इतना बड़ा, अरे हम तो चूहा थे भैया वहाँ, वो बंडल लेके किसी और को भी तो बोल सकते थे, बट ही न्यू कि कितना मैं खींच रही हूँ, झट से जल्दी कर दिया तो ढेर सारा कपड़ा हमारे हाथों में आ जाता है, एंड आई वुडंट हैव नोन कि उसको कैसे हैंडल करूं। तो ये जो सेंसिटिविटी है एक डायरेक्टर की, कि उसके बाद दुबे आ नहीं रहा था ऑन द स्टेज, इट एंडेड, ही मेड इट लाइक दैट, इट एंडेड ऑन मी। बट ये जो पूरी चीज़ है इसको, और एक इन सब की परमिशन लेके लास्ट में कहना चाहती हूँ कि देखिए क्या डायरेक्टर होते थे, या व्यक्ति, डायरेक्टर नहीं, ओम भाई के लिए बोलूँगी। एज आई सेड, स्वेच्छा से निराश्रित। तो आप ये सोचिए कि एक बार ऐसी कोई हादसा हुआ कि ये प्ले कलकत्ते जा रहा था, मैं दिल्ली में थी उन दिनों,
ये बिल्ली चली पहन के जूता होगा और पूरा फेस्टिवल होगा, बज्जू बताएंगे। हे भगवान, जो भी कारण हो वो नहीं गया, किस लिए? एक अदना से चूहे के लिए। ये बात जो मेरे जीवन में सिखा गए हैं वो ओम भाई, मैं भूल नहीं सकती। ओम भाई, मोहन राकेश, बज्जू, ये सब खड़े थे। ठीक है, अगर यही प्रिंसिपल है तो नहीं जाएगा प्रोडक्शन। अभी आप कहानी सुन चुके हैं कि देशांतर कैसे हुआ, और हर एक थिएटर ग्रुप के लिए एक प्ले, इनका फेस्टिवल हो रहा था देशांतर का कलकत्ते, और वो नहीं गया। और वो किस खाली उसूलों के पीछे। ये हमारे उसूल हैं, हम इस पे स्टैंड करेंगे। इनकी मीटिंग हुई, हम यहीं रविंद्र भवन के प्रांगण में, और हम टुकुर टुकुर ताक रहे थे भगवान क्या हो रहा है। बट व्हाट आई मीन टू से, आज के यंग एक्टर्स के उसके लिए कि ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व वाले रहे डायरेक्टर्स जिनसे हम लोगों का साबका हुआ, जो ईज़िली हम रिप्लेस हो सकते थे। ऐसा कौन से, हम सुधा शिवपुरी थे उन दिनों, तो फिर भी नहीं, वो है तो है, बस नहीं तो नहीं। एंड दे ऑल टुक द कॉमन डिसीजन, एंड दैट इज़ हाउ द प्ले डिडंट गो। नहीं, डिज़ाइन एंड लाइटिंग सब के प्रति काफ़ी सावधानी थी। लाइटिंग वगैरह में तो कोई दिक्कत थी नहीं। डिज़ाइन का ऑफ कोर्स इन देशांतर वी कुडंट अफोर्ड वेरी बिग ह्यूज सेट्स एट्सेट्रा, तो मिनिमलाइजेशन की तरफ था और वो डिज़ाइन का हिस्सा था। और उस लिहाज से एक्टर्स का मूवमेंट हमारे लिए बड़ा डिज़ाइन था। कॉस्ट्यूम वगैरह करना थोड़ा बहुत जितना हम लोग जानते थे उससे हम लोग काम चलाते थे, इसलिए डिज़ाइन वॉज वेरी मच a consideration but not the prime consideration in that kind of a group. That was for the practical reason, not for notional reasons. That's all I will say on that. मेरी एक बड़ी स्वार्थी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं या मेरे साथ के जो नए लोग हैं जो थिएटर कर रहे हैं, वो देशांतर अभियान और बाकी ग्रुप के काम से बहुत परिचित नहीं है। तो ये जो आयोजन हुआ है इसमें भी बहुत सारे लोग शामिल नहीं हो पाए हैं। तो अगर इस तरह के आयोजन बढ़ें, आप सब लोग अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव लें इस चीज़ को, कुछ क्लिपिंग नाटकों की, इस तरह की बातचीत या कुछ नाटक के सीन या कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाए जाएं, तो जो नई पीढ़ी है, जो हम जैसे लोग जो नए आ रहे हैं, जैसे मैंने आज बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सुनी देखी, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। समझ में आएगा कि किस तरीके से इतने सारे लोग कोलैबोरेट होकर एक इतना अच्छा काम कर रहे थे। तो अगर ये सब अगर लगातार होता रहेगा तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा इस पूरी चीज़ से। इसकी शायद एक वजह ये भी है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और बहुत सारे लोग शायद देशांतर के बारे में जानते नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ। क्योंकि अब तो हम बयान खाली शब्दों से कर सकते हैं ना, इनैक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ एक्चुअल इनैक्टमेंट फिर सवाल करिए तो मज़ा है। देखिए, मैं एक बात, चूँकि समय निकला जा रहा है, ये कहना चाहूँगा। देशांतर में भी ये था, और उस समय ज़्यादातर ग्रुप्स में ये कि जो एक्टर थिएटर ग्रुप में काम कर रहे थे उनको कोई फ़ीस नहीं दी जाती थी और न उसकी तवक्को रखते थे। कभी कोई कहीं से कोई ग्रांट आ गई या कुछ हो गया और कोई कॉल शो है उसमें से कुछ मिल गया तो एक जिसको कहते हैं क्या, चाय पानी टोकन दे देने का। लेकिन अल्टीमेटली थिएटर को एक प्रोफेशन के तौर पर सरवाइव अगर करना है, हर फॉर्म के तौर पर भी सरवाइव करना है, तो इसकी मांग आखिरकार उस समाज से ही आनी चाहिए जिसको इसको देखना है और सस्टेन करना है। सिर्फ ये सरकारी ग्रांट के भरोसे चल रहा है, और सरकारी ग्रांट भी फिर आपका हमारा दिए हुए टैक्स का हिस्सा है। इस पर कोई नेशनल पॉलिसी बनी नहीं है और इसकी कोई मांग नहीं हुई है। हम और आप इसकी मांग नहीं करते हैं, तो कैसे आपको सोचना होगी। ये नटरंग रज़ा फाउंडेशन में एक बड़े पेंटर ने दान दे दिया, उससे काम चल रहा है, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा इसके बारे में आप
जो आने वाली पीढ़ी के कुछ नुमाइंदे यहाँ अगर हैं तो इसको बढ़ाइए आप लोग आपस में। तब आप सिर्फ इस प्रकार से सोचेंगे कि हमें इसकी सूचना हो जाती तो हमारे लिए कर दिया जाता तो हो जाता। आप मांग नहीं रहे हैं, हम मांग नहीं रहे हैं, और इसकी मांग अगर नहीं होगी तो ये होगा नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा, टेक्नोलॉजी में चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि न तो विषय से ताल्लुक़ रह गया है, ना आपको उस लिबास से ताल्लुक़ रह गया। इस लिबास से अगर ताल्लुक़ है तो इसके लिए थोड़ी सी मांग उठाइए। थोड़ा सा मांग नहीं सकते तो कम से कम चीखिए, चिल्लाइए, रोइए इसके लिए। दैट्स ऑल। मुझे देशांतर के सिलसिले में मैं याद करना चाहता हूँ गांधी जी और हमारे कई ऐसे लोग जो बैक स्टेज में काम करते थे। हर ग्रुप में ऐसे लोग हुए हैं, हमारे ग्रुप में भी ऐसे लोग थे जिनकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर पाए हैं। मैं उनके प्रति उनको स्मरण करता हुआ याद दिलाता हूँ। और अब आप प्रश्नोत्तरी जो कराना चाहें करिए। थैंक यू। मेरा इंटरेस्ट है थिएटर में और रिसर्च भी है मराठी थिएटर के बारे में। माधुरी नाम है मेरा जी, और मैं कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ महाराष्ट्र में। मुझे दिल्ली का थिएटर सीन इतना मालूम नहीं है, और मैं उत्सुकता से कल से सुन रही हूँ कि ये चारों ग्रुप जो है उन्होंने क्या काम किया, किस तरह से आज आप लोग सब अपना पास्ट देख रहे हो। और चूँकि शायद कल से लेके आज तक शायद ये पहला सेशन हो रहा है जहाँ पे पूछने के लिए मतलब इनवाइट किया गया है ऑडियंस को, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी मेरे दिमाग में जो 2-3 सवाल है वो पूछना चाहूँगी। वो आपके ग्रुप को ही एड्रेस है ऐसी बात नहीं है, वो बाकी तीनों ग्रुप के लिए भी एड्रेस मैं करना चाहूँगी। वो इस तरह से है, शायद आपको अटपटे लगे या सवाल ही ना लगे, आई डोंट नो। पहली बात ये कि आप सब लोग जब थिएटर कर रहे थे तो उसमें आपको थिएटर करना अच्छा क्यों लग रहा था? मतलब मुझे ये जानना है कि ज़िंदगी के क्या ऐसे मायने हैं, कौन से मायने हैं जो आप लोग तब ढूंढ रहे थे थिएटर में, ये एक चीज़ है। दूसरी बात ये कि थिएटर आपने उस ज़माने में किया जब ये टीवी सीरियल्स, रियलिटी शोज़ और ये सारी बाकी चीज़ें नहीं थी, ज़्यादातर नहीं थी। तो मुझे ये जानना है कि थिएटर किस तरह से पब्लिक इमेजिनेशन को प्रभावित कर रहा था। जैसे कि मैं मराठी थिएटर के बारे में 1-2 लाइंस कहूँगी कि उसमें आपको तो मालूम है कि फ़ीमेल इम्पर्सोनेटर जैसे बाल गंधर्व है पुराने ज़माने के, तो वो जिस तरह के मैनरिज़म्स उनके रहे हैं, फेमिनाइन मैनरिज़म्स, उनकी तो फैशन आ गई थी उस ज़माने में। और लोग आज भी आप सिनेमा में देखो या लिटरेचर में देखो तो थिएटर के ट्रेसेस मिलते हैं, जिस तरह से इमेजिनेशन काम करती है। इट कैन बी अबाउट मैन वुमन रिलेशनशिप और एनी अदर थिंग। तो आप क्या कहेंगे इस तरह के इम्पैक्ट के बारे में ऑन पब्लिक इमेजिनेशन? और तीसरी चीज़ ये है कि मैं अगर इनवाइट करूँ आप सब लोगों को थोड़ा क्रिटिकली सोचने के बारे में, आपने जो काम किया, आपकी जो कंट्रीब्यूशन रही है या फिर अचीवमेंट्स रही है, तो ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में आप लोग डिससेटिस्फाइड रहे हैं, या कौन से ऐसे फीचर्स आपके काम के रहे हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं कि शायद वो इनकम्प्लीट रह गए, या फिर उस टाइम की वो डिमांड थी लेकिन हम नहीं कर पाए, या जो भी प्रॉब्लम्स रही हों। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में अगर मैं कुछ और जान सकती हूँ तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। कौन सा सवाल करना तो बोल देखिए, जो हम लोग नहीं कर पाए वो तो ये है कि हम लगातार रंगमंच नहीं कर पाए, एक बात। और रही बात दूसरी कि लगातार रंगमंच, अभी बाल गंधर्व जी का नाम आपने लिया, मैंने अभी मराठी का उपन्यास हिंदी में जो अभिराम भटकमकर ने लिखा है वो मैंने पूरा किया। बाल गंधर्व जी का क्या हुआ, किस तरह की परिणति हुई, ये किसी भी कलाकार के जीवन में वैसे हो सकता है, लेखक के जीवन में भी हो सकता है, लेकिन नाट्यकर्म विधा के रूप में आज जिस संकट पर, जिस प्रश्न से जूझ रही है, ऐसा समय आज से पहले नहीं था। क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी आई है उस समय बहुत सारी चीज़ें नाट्यकर्म के हिस्से है या नहीं सोचना पड़ेगा, और इसमें शब्द या कविता या नाट्य का फॉर्म या कहानी का फॉर्म, कविता का फॉर्म, थिएटर का फॉर्म अल्टीमेटली क्या होगा, ये ऐसे प्रश्न हैं जिस पर आपकी पीढ़ी विचार करेगी,
कुछ लोग चिंतन अपना छोड़ के जाएंगे, ये प्रश्नवाचक हैं, इसके उत्तर नहीं हैं, पीढ़ियों को तलाशना पड़ेगा। प्रश्न ये ज़रूर है कि हम जिस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं और आगे जितने साल भी रहने वाले हैं, जैसी भी डेमोक्रेसी होने वाली है रहेगी, ये सांस्कृतिक कर्म और विशेष करके रंगमंच रंग क्रिया के लिए क्या जगह देता है। पंचायतें कहाँ हैं, नगर पालिकाएँ कहाँ हैं, हमारा कोर्सेज में चिल्ड्रन के पाठ्यक्रम में रंगमंच कहाँ है, अभिनय कहाँ है। जबकि अभिनय, ये मेरा निजी विचार है कि किसी भी जीव का प्रादुर्भाव अभिनय के साथ है। अभिनय, बच्चा जन्म लेते ही अभिनय आरंभ करता है। आप सिर्फ आदमी ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि कुछ चौपाए भी हैं जो जन्मते ही 2-4 दिन में होश करते ही उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं आनंद के लिए। ये जो जैविक क्षमता है प्रकृति से लेकर के, वो उस क्षमता के लिए समाज रचना में कहाँ जगह है, इसकी जगह की तलाश के बारे में यदि चिंतन नहीं होता तो ये सारा का सारा जो तंत्र है हमारा, प्रजातंत्र और लोकतंत्र वगैरह, झूठा पड़ता है। क्योंकि जीव को सामाजिकता और जीव की निजीयता दोनों की जगह नहीं है। तो यही तो लड़ाई है रंगमंच में भी, यही तो अभिनेता की लड़ाई है, यही नट की है या नर्तक की है या गायक की है, वादक की है, राजनेता की नहीं है वो। इन प्रश्नों पर हम लोगों ने कोई सवाल उठाए ही नहीं है, मांग की ही नहीं है, और हम भगे जा रहे हैं। इसलिए वो एक दूसरी तरह का संकट है, वो हमारी आपकी पीढ़ी का संकट हमारे से ज़्यादा आपके सामने आएगा, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। आइए सर, आइए, आपको बुला रहे हैं। अब आपका। मित्रों, जैसा कि होता है, इस तरह के हर संवाद संकट पर जाकर ठहरता है। संवाद के दौरान भी कुछ संकट पैदा होते होंगे, लेकिन कुल मिलाकर अंत में फिर ये लगता है कि बड़ा संकट है। हर पीढ़ी को लगता है कि उसका संकट पिछली पीढ़ी से ज़्यादा तीखा, ज़्यादा गहरा, ज़्यादा अदम्य इत्यादि इत्यादि है। एक बात। दूसरी बात कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल कोई और नहीं निकाल सकता। हमने एक लोकतंत्र में इस समय ऐसा एक आदत पाल ली है कि हम कुछ नहीं करेंगे, वो करेगा, वो जो भी हो, कोई मसीहा हो, कोई उद्धारक हो, वगैरह वगैरह। तीसरा ये है कि हमारे समय में नाटक जो है अब रंगमंच से मुक्त होकर राजनीति में चला गया है। तो हमारा सबसे बड़ा नेता से बड़ा अभिनेता कौन है आज? तो इसलिए ये दूसरा संकट है। एक और संकट ये है कि मसलन हमारा सारा मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो 4 छवियों से आक्रांत है। नेता, धर्मनेता, खिलाड़ी, अपराधी। यही 4 हैं जो हमारी आज की तथाकथित सार्वजनिक जीवन, क्या पब्लिक इमेजिनेशन पर घर कर गए। तो इस समय तो जो कोई भी थोड़ा बहुत रचता है वो भी विरोध ही कर रहा है, चाहे वो सीधे सीधे कर रहा है, किसी का नाम लेके कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुझे याद आया अभी जब ये कहा जा रहा था कि शिमला में ऐसी वर्कशॉप हुई थी जिसमें एक ही, तो हम लोगों ने कालिदास अकादमी में एक बार ये प्रयोग किया। सब माना जाता है कि विक्रमोर्वशीयम का जो चौथा अंक है वो बहुत ही मुश्किल है। उसमें वो ससरा पुरुरवा कुछ नहीं कर रहा है, विलाप कर रहा है। अब पूरा अंक जो है वो पुरुरवा का विलाप है। तो अब इसको कैसे करोगे? तो हम लोगों ने 3 निर्देशकों से कहा कि आप इसको करिए। एक थे कावलम नारायण पणिक्कर, दूसरे थे रतन थियम, और तीसरे कमलेश दत्त त्रिपाठी और प्रेमलता शर्मा। और तीनों ने ये 3 अलग अलग प्रस्तुतियाँ की एक ही
आप अभी भी मैं सोच के मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इतना भयानक आश्चर्य होता है कि तीनों ने ऐसा किया कि आप ये भूल ही गए कि वो जो मूल टेक्स्ट था वो ससरा क्या था, क्योंकि वो प्रस्तुतियां जो थीं वो इस कदर अपने आप में, अव्वल तो ये भी नहीं लगा कि ये आधी अधूरी है, क्योंकि वो तो एक बड़े नाटक का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उस अंश को तीनों ने अपने अपने ढंग से ऐसा किया था। तो ये बहुत, मुझे ये भी याद आता है कि कालिदास अकादमी में एक बार हम मणिमाधव चाक्यार को लेकर गए, कुडियाट्टम के बहुत बड़े, उनको हमने तुलसी सम्मान दिया था। तो अब वहाँ दर्शकों में विजया मेहता, हबीब तनवीर और ये 80 साल का बूढ़ा अधनंगा और पेट बाहर निकला हुआ, और बड़ी मुश्किल से उसको बैठाया गया कुर्सी पर, और एक चेंडा या क्या कहते हैं उसको, हाँ बस वो। अब उसने, और मुझे ठीक से याद है कि हबीब के चेहरे पर भी और विजया जी के चेहरे पर भी थोड़ी ऊब और उकताहट थी कि अशोक कहाँ से क्या करने लगता है, कौन किसको ले आया। उन्होंने नल दमयंती प्रसंग से एक पंक्ति पर 45 मिनट अभिनय किया, 45 मिनट। और वो सारा जो वहाँ दर्शक समाज था जिसमें ये बड़े बड़े रंग निर्देशक थे, ये स्तब्ध देखते रहे कि कोई व्यक्ति एक पंक्ति को 45 मिनट तक ऐसे कर सकता है कि हमारी आंखें उसके चेहरे से हटे नहीं। उसने कुछ नहीं किया, कोई आहार कुछ नहीं था, नंगा बदन था, सिर्फ हाथ थे, और वो उससे उनके चेहरे पर कितने तरह के। तो मित्रों, इस कला ने अद्भुत रहस्य और जटिलता रही है। ये इतना सिंपलिस्टिक नहीं है जैसा हम बात करते हुए उसको बना देते हैं, क्योंकि बातचीत की एक मजबूरी ये है कि उसमें आपको हर चीज़ को सरल करना चाहिए, और हमारे समय में तो सरलता का बहुत ही बड़ा आतंक हो गया। इस समय जटिल होना अधिक रेडिकल होना है, क्योंकि अगर सब लोग आपकी बात समझ रहे हैं तो आपकी बात में कुछ गड़बड़ी होगी। आखिर भाषा के हमारे यहाँ अनेक रूप हैं, उनमें अभिधाही का ऐसा आतंक क्यों हो गया है, कहीं व्यंजना का क्यों नहीं है, ध्वनि का क्यों नहीं है, इत्यादि इत्यादि। पर बहरहाल नटरंग प्रतिष्ठान और रज़ा फाउंडेशन इस आयोजन से बहुत संतुष्ट हैं और बहुत असंतुष्ट भी। संतुष्ट इसलिए है कि 4 दलों को हमने अरसे बाद उनमें से कईयों को एक दूसरे से मिला दिया कि वो आए, उनकी यादें मिली, उन्होंने याद किया अपने संघर्षों को, अपने झगड़ों को। सभी लोग ज़्यादातर बड़े सद्भाव से बोले, हालांकि रंग कर्म या किसी भी मानवीय कर्म में निरा सद्भाव नहीं होता होगा। थोड़ा आज ये कहा राम गोपाल बजाज ने कि हम लोगों में स्पर्धा होती थी कि तेंदुलकर का नाटक पहले अभियान को मिलेगा कि हमें मिलेगा, वगैरह वगैरह, लेकिन ये बहुत ही मतलब ये सद्भाव में भी सद्भाव है, हाँ? लेकिन हमने बहुत सद्भावपूर्ण बातें की। जो हमारे तनाव थे, जो हमारी विफलताएं थी, असल में चूँकि सफलता का युग है, कोई अपनी विफलता बताता नहीं है, क्योंकि कौन कहेगा कि मैं विफल हूँ। हमारे यहाँ एक बड़े कवि हुए हैं जिनकी जन्म शताब्दी इन दिनों चल रही है, गजानन माधव मुक्तिबोध। उनसे अधिक विफल कोई व्यक्ति नहीं था। 47 बरस की उम्र के पहले उनकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन काल में पहला कविता संग्रह तक नहीं छप पाया, और अब पिछले 60 वर्ष से वो हिंदी की दुनिया पर छाए हुए। तो मैं उनको हिंदी का सबसे विफल कवि कहता हूँ, और फिर कहता हूँ कि एक ऐसे समय में जहाँ सफल होना बहुत आवश्यक और अनिवार्य हो गया है, तो विफल होना सार्थक है। उस समय विफल हो जब सब लोग सफल हो रहे हों। तो मित्रों, ये तो लंबी चौड़ी बात है, मैं बातूनी आदमी हूँ, तो ये सब मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। आप सब यहाँ आए, जो युवा लोग आज थोड़े से आ गए, खुदा के फजल से, बानू खुदा के फजल से आए कि शैतान की फटकार से आए, कौन जानता है, लेकिन आ गए तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़रा ये ख़बर औरों तक भी पहुँचाइए, और हम इस आयोजन को किसी और
रूप में जारी रखेंगे, क्योंकि इस बहाने दिल्ली के रंग इतिहास का एक अनौपचारिक संस्करण भी तैयार होता रहेगा। ये ज़माना भूलने का है, इस कदर भूलने का है कि आजकल राजनेता ऐसी चीज़ों का श्रेय ले रहे हैं जो पहले से चली आ रही हैं। वो तो गनीमत है कि भी थोड़े दिन में कहेंगे कि गंगा और नर्मदा हम ही ने बहाई। वो तो अभी थोड़ा संकोच में है और धीरे धीरे उनका संकोच कम हो रहा है, लेकिन अब वो देर सवेर ये भी दावा कर बैठेंगे। तो ये जो विस्मृति का, ये जो मैसिव एमनीसिया का युग है, इसमें याद करना भी बचाना है। याद करना भी पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, किन तकलीफ़ों से हुआ। आज तो ये लोग बहुत चिकने चुपड़े लगते हैं, या ठीक ठीक लगते हैं मतलब कुल मिला के, लेकिन हमने इनको बहुत मटमैला देखा है। उस समय मैं चमकीला होता था, क्योंकि हम तो सरकारी नौकरी में थे, लेकिन ये लोग जो थे ये इस तरह के चमकीले और बढ़िया कपड़े वपड़े पहनने वाले लोग नहीं लगते थे उस समय। तो ये वक्त बदला है, लेकिन ये भी कहना गलत होगा, हमको नए रास्ते तो खोजने पड़ेंगे। और रास्ता कोई किसी से, हमारे अध्यापक थे वो कहते थे हम तुमको ये तो बता देंगे कि भाई ये रास्ता है, लेकिन रास्ते पर मियाँ चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। उसके गड्ढों में गिरोगे और जो भी होगा, लेकिन वो चलना तुम्हें होगा। मैं तुमको रास्ते पर नहीं ले जाऊंगा। तो इसलिए ये लोग भी आपको नहीं ले जा सकते, ना हम ले जा सकते हैं। हम मतलब नटरंग प्रतिष्ठान और रज़ा फाउंडेशन। लेकिन ऐसे प्रयत्न हम करते रहेंगे कि आपको भी याद आए, आपकी भी याददाश्त बनी रहे, या आपकी याददाश्त में जो नहीं है वो घुसे थोड़ा। और हम लोग और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सब यहाँ आए, के लिए बहुत बहुत आभार।